नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं उस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियाल जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और हम दोनों कहाँ हैं? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद। जय हिंद। टू ऑल आवर व्यूअर्स इन चाइना, ni hao to all our viewers in Japan, konnichiwa. Pradeep ji. Habariyako Jambu to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया कर लो। Please subscribe to the channel. When you click to the icon subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation. Nation Now. Nation now. So Pradeep ji, about 50 judges have written Yes. against the impeachment move. वो जस्टिस स्वामीनाथन को जो impeach करने की बात आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरी अभी तक समझ में नहीं आ रहा, such a matured party like the DMK, why would they want to impeach a judge who's just given an order against them? That's it. So what? अरे भाई सुप्रीम कोर्ट जाओ ना यार, impeachment का क्या मतलब? हमें this is very strange. This turns the law upside down. Already we are having so many problems with regard to the judiciary. You know, the cases have piled up. There are so many people can't get justice, and then on top of it, you're trying to impeach judges. Now, come on! Now everybody has got into it because the RSS Mohan Bhagwat ji asking the people that you should come forward and see what's happening in Tamil Nadu. Ji. And BJP has already raked it up in the parliament. बीजेपी अनुराग ठाकुर जी ने क्लियर कट कहा कि डीएमके पॉलिटिक्स जिस प्रकार से खेल रही है अगेंस्ट सनातन धर्म, एवरी एक्ट ऑफ दियर्स इज अगेंस्ट सनातन धर्म। भाई वो अमित शाह जी ने भी कहा है बिल्कुल कि भाई क्योंकि ऑर्डर आपके खिलाफ आ गया तो आप जज को इम्पीच कर दोगे। ये क्या Exactly. मतलब? ये तो कोई मतलब नहीं होना सर, क्या है? बट दिस एंड देन ही वाज एबल वेरी नाइसली टू गिव एन एग्जांपल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट where three judges were left behind and Mrs. Gandhi's favorite judge was made the Chief Justice of India, A.N. Ray Saab. The fourth one. A.N. Ray. He was fourth in line and boom, 3 judges were superseded. Yes. So all these things come back to haunt. So I still can't understand why is the Congress there, why is the Samajwadi Party there. आप लोग वहां पर क्या कर रहे हैं भाई? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। DMK knows what it's doing. Yes. DMK exactly knows what it's doing. और दलित और मुस्लिम वोट्स उनको मालूम है किस प्रकार से लेना, बिल्कुल। वो अपने पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। But the other people jumping into the bandwagon, that is something that they need to answer because where is DMK's gain? I don't think Congress is going to gain anything from this. Sir, and the Samajwadi Party might lose a lot of votes. बिल्कुल। अरे भाई जो यादव है, जो आपका यादव वोट है वो भी तो हिंदू है ना क्या? और सबसे बड़ी बात यह प्रदीप जी, कोई 6 there are about 6 Murugan temples, that is Kartikeya temples in Uttar Pradesh. आप मतलब क्या कर रहे हैं? मेरी समझ के बाहर है। I don't know who advised Akhilesh Yadav ji to go along with his impeachment motion. It just so happens सबने कहा कि भाई इंडिया अलायंस का भी साइन कर दो। This is not done यार, absolutely not done. And Mr. Modi and Mr. Amit Shah were there at Port Blair today, remembering वीर सावरकर। और वीर सावरकर जी का जो गाना है 115 साल हो गए उसको, well they remember that। और जहां पर अमित शाह जी ने रणदीप हुडा की तारीफ भी करी, उन्होंने कहा कि भैया जब तुमने पिक्चर बनानी शुरू करी थी मुझे लग रहा था कि तुमने गलत जगह हाथ डाल दिया, लेकिन तुमने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। That's what he said. And number 2, Mohan Bhagwat ji has appealed again and again to everybody कि भाई हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना बंद कीजिए, और हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं वो हमेशा ही हिंदुस्तान में रहेंगे। As you know, the first church ever in the world was built in Kerala, in India, St. Thomas. He was one of the disciples of the Christ himself, one of the 12. He came and he built the first church in India. And the first mosque in India, not just mosque in India, or not just mosque church in India, the first church in the world was built in India. And the first mosque outside of Mecca was also built in India. So all I am saying is, as Mohan Bhagwat ji says, कि भाई इतने हजार साल से जो यहाँ पर रह रहे हैं वो अगले हजारों साल तक भी यहीं रहेंगे, तो ये तो आप छोड़ दीजिए। which is मोहन भागवत जी क्लियर है, उन्होंने कहा कि RSS will not make this a campaign. Yes. Where Krishna Janmabhoomi is concerned and where Kashi Vishwanath, but he said it's the duty of Muslims to hand over these premises to the Hindus. क्लियर कट था, हम एजिटेशन नहीं करेंगे,
बट जो इस पे किसी को रोकेंगे भी नहीं एजिटेशन करने के लिए। दोनों चीज है, हम करेंगे भी नहीं बट किसी को रोकेंगे भी नहीं, पर वो मानता है कि मुस्लिम शुड बी गुड हार्टेड एंड हैंड ओवर दीज टू प्लेसेस। Absolutely, absolutely. Right, let's go straight across to our guests. I think we've got a great panel of guests tonight. Let's go straight across to them. Dr. Pooja Mishra, namaskar. How are you, ma'am? Always a pleasure having you on the show. नमस्कार और आपका स्वागत है, ma'am. So nice of you. So nice of you to come on our show. And Dr. Aviral Malik, how are you, sir? नमस्कार, sir. जी नमस्कार। नमस्कार। एकदम बढ़िया। नमस्कार सर भाई। लेट मी स्टार्ट विद डॉक्टर पूजा मिश्रा। डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि वो जस्टिस स्वामीनाथन जो है मदुरई बेंच के, मद्रास हाई कोर्ट के, उनके खिलाफ एक इम्पीचमेंट मोशन लेकर के आए हैं जनाब डीएमके के लोग। वहां पर अखिलेश यादव जी क्या कर रहे थे, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। अखिलेश यादव जी ने भी उनको सपोर्ट किया इम्पीचमेंट मोशन के लिए, और अखिलेश यादव जी तो शुरू से ही ये बोल रहे हैं कि भाई लीगल प्रोसीजर फॉलो करो, आराम से चलो। तो उनको क्या हो गया है? Was he advised wrongly? What is going on over here? I would like to know. There he is. He's standing right there, अखिलेश यादव जी। जी, अब आप बताएं मैम, प्लीज। डॉक्टर मिश्रा। जिन जस्टिस की हम बात कर रहे हैं जी, आज स्वामीनाथन, और उनके स्पीचेस उठा करके देखें, आपने देखा होगा जो इम्पीचमेंट नोटिस दी गई हुई है उसमें कहीं मेंशन नहीं किया गया हुआ है कि जो जजमेंट है उस जजमेंट के बेसिस पे दिया गया हुआ है। मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा पॉइंटर्स आपको जानकारी होगी राजीव जी। जी जी। तो वहाँ आप और आपको मुझसे ज्यादा जानकारी होगी कि जो हम जस्टिस की हम बात कर रहे हैं स्वामीनाथन जी, उनके किस तरीके की बयानबाजियां अभी कंटिन्यूसली आई हुई हैं, जो ये बात करते हो। ही इज होल्डिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, ओके। हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी इज टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट टू क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो व्यक्ति अपहोल्ड नहीं कर पा रहे कॉन्स्टिट्यूशन को, मुझे लगता है कि लेट हुआ है ये। इसको तो पहले आ जाना चाहिए था, जब उन्होंने कहा कि जो हमारा संविधान है जिसको उनको अपहोल्ड करना चाहिए, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये संविधान एक्ट, गवर्नमेंट एक्ट, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 से कॉपीड है। जब उन्होंने कहा कि जब ये संविधान बना गया हो तो जो डेमोग्राफी था अगर वो सस्टेन नहीं रहती है तो ये जो संविधान का कोई अस्तित्व तो नहीं रहेगा। So when you are questioning our constitution, which is a living document, और मैं कहूँगी immortal है, with time ये change होगा, develop होगा, और आप जज हैं, जस्टिस है, तो ये तो लेट ही हुआ। और इस तरीके से मुझे लगता है कि बहुत सारे जिसमें जो है जस्टिस लोगों ने भी क्वेश्चन मार्क उठाया कि आप अभी लोगों को अगर समझाने को जाएंगे, डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, आई डोंट डिसएग्री विद यू, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, फंडामेंटली a judge cannot say what our friend, the Right Honorable Justice Swaminathan has been saying. Not just from now. Not just from now. You look at his career for the last 20 years. He's been saying that. But ये जो जजमेंट आई है मुरुगन को लेकर के, मदुराई दीपम को लेकर के, उसके फौरन बाद ये जो हुआ है, this looks highly motivated and highly questionable. That's all I am saying, ma'am. Very frankly speaking. इसके पहले अगर आप कर देते तो अलग बात थी। जी जी बोलिए। राजीव जी, आपने कहा इम्पीचमेंट नोटिस पे हमने साइन क्यों किया? जी, मैं ये बता रही हूँ कि हमने साइन क्यों किया। ये सही था, साइन करना चाहिए था वहां पे। आपको पता है कि इम्पीचमेंट मोशन, इम्पीचमेंट नोटिस समाजवादी पार्टी नहीं दे सकती। वी हैव 37 MPs इन लोकसभा, और राज्यसभा में ऑब्वियसली हमारे पास 50 नहीं है। आपको पता है इम्पीचमेंट नोटिस लेकर के आने के लिए आपको लोकसभा में 100, एटलीस्ट 100, और राज्यसभा में एटलीस्ट 50 चाहिए होगी। इन टोटल 120, यू नीड 120 सिग्नेचर्स। जी मैम। तो उससे पहले तो जो है हमारे पास था नहीं कि हम लेकर के आते हो। हम तो कहते हैं जब इस समय इस तरीके की बयानबाजियां जस्टिस की तरफ से आने लग जाए, हालांकि भी इतिहास रहा है कि इम्पीचमेंट जो नोटिस रही है मोशन में कभी कन्वर्ट ही नहीं हुआ। अभी जो वर्मा जी का बल्कि केस आया हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उनको तो बिल्कुल इम्पीचमेंट हो जाना चाहिए था। जो उनके पास में पैसे मिले तो उनके घर पे, फिर जेल गया, इतने सारे करप्शन चीजें रही, पर उनके अगेंस्ट में जांच बैठी और मोशन, वो पता नहीं मोशन होकर के फिर डिमोशन हो गया और वो वही कहीं पे रुक गया। तो पूजा मिश्रा जी, अखिलेश यादव जी ने कहा कि वंदे मातरम इज नोबडीज प्रॉपर्टी, यह किसी के पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है वंदे मातरम। जिस प्रकार से बीजेपी इस चीज को हाईलाइट कर रहा पार्लियामेंट में, नेहरू जी ने टुकड़े टुकड़े कर दिए, नेहरू जी ने इसको बांट दिया, दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ पार्टीशन। तो जिस प्रकार से, हाउ डू यू सी दैट, व्हाट इज योर स्टैंड? अखिलेश यादव जी क्या किस तरह से देख रहे जब वो कहते हैं कि वंदे मातरम इज नोबडीज पर्सनल प्रॉपर्टी?
डॉक्टर ये पूजा तो मिश्रा, फैक्ट है ना कि वंदे मातरम तो किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है ना। अगर आप वहां पर डिस्कशन करना चाहते हैं वंदे मातरम पे पार्लियामेंट में, तो आपने कौन सा मैसेज दिया? अगर वंदे मातरम को आज हम याद कर रहे थे, हम कहते हैं पार्लियामेंट में डिस्कशन में हो रहा था, आप जो है स्कूलों में अनाउंस कर देते कि हाफ क्लासेस के बाद में हम वंदे मातरम की 150th एनिवर्सरी मनाएंगे और जो है इस पे इसको बताया जाएगा किस तरीके से आया, किस तरीके से आजादी के दीवानों ने इसको गाया। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या नहीं, जिन्ना के सामने घुटने टेक दिए। जिन्ना ने जो कहा कि लाइनें हट जानी चाहिए थी, अरे जिन्ना भाई साहब की डेथ 11 सितंबर 1948 को हो चुकी थी। और वंदे मातरम जो एक्सेप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, 20 जनवरी 1950 को एक्सेप्ट किया गया हुआ था। जी। और उसको फ्रेम करने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और जो है आयरन पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, इतने लोग थे। अब आप उन पे क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं। आप सोचिए कि डिविसिव पॉलिटिक्स आपको यहाँ पे भी करनी है। जो डिस्कशन एक गौरवान्वित वाला हो सकता था, जिसपे पूरा देश एकत्र होकर के गौरव फील करता, उसको भी सरकार ने अंग्रेजों की पॉलिसी ला करके डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करके, ऐसा कि नहीं वंदे मातरम का हम जो है सम्मान करते हैं वो नहीं करते हैं, वो सम्मान नहीं कर रहे हैं, या उन्होंने डिवाइड कर दिया, उसमें और ऐड करना चाहिए था। जिस वक्त संविधान का गठन हुआ, क्यों इसको राष्ट्रगान नहीं बनाया गया, राष्ट्रगीत ही बनाया गया? आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू इसलिए किया गया होता क्योंकि 1930 में 26 जनवरी को जो आजादी की लड़ाई लड़ा करते थे, उन्होंने इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया हुआ था कि हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे भारत का। और उस 26 जनवरी का महत्व कम ना हो, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होने के बावजूद भी 26 जनवरी 1950 को इंप्लीमेंट हुआ। और इसको राष्ट्रीय गीत भी इसीलिए बनाया गया क्योंकि अंग्रेजों को इससे दिक्कत हो रही थी और हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे इसको गा करके गौरवान्वित महसूस करते थे और इसे गा करके लड़ा करते थे। अंग्रेजों को इससे इतनी प्रॉब्लम हुई थी कि इसको बैन भी किया हुआ था। तो इसकी महत्ता कम ना हो, तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता थे उन्होंने इसको एज अ राष्ट्रीय गीत उसपे जो है इंप्लीमेंट किया, हमारे संविधान में उसको जगह दी। और हमारा जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट में ये नहीं कहा गया हुआ कि आपको राष्ट्रीय गीत गाना कंपलसरी है, आपको राष्ट्रगान गाना है, आपको देश का सम्मान करना है। पर मुझे लगता है कि अगर फंडामेंटल राइट में ये होता कि आपको ये जो है गाना, ये तो लोग गाते भी। और ये इसीलिए मुझे लगता है ड्यूटी से, फंडामेंटल ड्यूटी से बाहर रखा गया हुआ है ताकि आपकी इच्छा हो तो गाइए, नहीं गाइए। लेकिन किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। Nobody objects. Let's be very clear. Apart from Nobody objects. Nobody apart from the objects. very few people, nobody objects. Let's be very clear. 1896, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर he sang it first. जो दो स्टैंजा उस वक्त एग्जिस्टिंग थे, ये भी क्लियर कर दूं। डॉक्टर अविरल मलिक साहब, डॉक्टर ढोने, वेलकम टू द शो। मैं ये भी क्लियर कर दूं, 1896 में बंकिम, उनको ऋषि बोलते हैं, ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सिर्फ दो स्टैंजा लिखे थे। वही दोनों स्टैंजा रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 में गाए। 1937 में एआईसीसी का जो सेशन था, इट वाज अडॉप्टेड एज अ नेशनल सॉन्ग बाय द कांग्रेस। सो ऑल आई एम सेइंग इज दिस इज, ये जरा वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। इन एनी इवेंट, हाउएवर, इट इज आल्सो ट्रू दैट पंडित जवाहरलाल नेहरू फेल्ट, and so did Rabindranath Tagore, by the way, at that time, that the rest, that is, बाकी जो 4 stanzas हैं, they are written in highly sanskritized Bangla, और हो सकता है बहुत लोगों को मुश्किल हो गाने में, और बहुत लंबा है। सबसे बड़ी बात यह है कि 6 के 6 स्टैंजा अगर आप गाएंगे तो बहुत लंबा हो जाता है। और some people, like say the Muslims etc., may not want to sing praises of Durga and Devi and other things, जो बाकी 4 स्टैंजा में आता है। सो दैट्स इट। एंड बट दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू आस्क डॉक्टर ढोने। जो प्रियंका गांधी जी ने बोला, स्पीच जो उन्होंने दी, उन्होंने ये कहा कि जिस प्रकार वंदे मातरम के ऊपर 10 घंटे का आप डिस्कशन कर रहे हैं, वैसे आप 10 घंटे का, 20 घंटे का पंडित नेहरू के ऊपर आप डिस्कशन करिए ना। आपने कहा कि ऑपोजिशन ने 90 बार आपको कुछ उल्टा सीधा बोला, आपने एक लिस्ट निकाली थी, 99 बार बोला, आप 999 चीजें निकालिए पंडित नेहरू के बारे में, लेकिन एक बार उसका डिस्कशन करके अपनी पूरी भड़ास बाहर निकाल दीजिए। उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे गिरते हुए रुपए के ऊपर, बढ़ती हुई कीमतों के ऊपर, डॉलर की कीमत कितनी बढ़ गई है, पेट्रोल और डीजल की कीमत क्यों नीचे नहीं आ रही है, वगैरह वगैरह, बेरोजगारी के ऊपर, इन पर बात करेंगे। सर कुछ बोलना चाहेंगे आप, डॉक्टर ढोने प्लीज।
डॉक्टर ढोने, कैन यू हियर मी सर सर? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी, हाँ सर सुन रहा हूँ। बोलिए बोलिए सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? फर्स्ट क्लास आ रही है, बोलिए। सर ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी हर बार अभी इतने में ऐसा हो रहा कि कोई मुद्दा उछालती है, उनको लगता है कि इससे अपने को फायदा मिलेगा, लेकिन उससे क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो मातृ संस्था है आरएसएस, उसका तो चेहरा बेनकाब हुआ, क्योंकि चर्चा बहुत चली। तो इसमें क्या आया, सिद्ध क्या हुआ कि कांग्रेस के हर प्रोग्राम के बाद ये वंदे मातरम होता है, ये सब इसकी चर्चा हुई कि कांग्रेस का जब भी कोई प्रोग्राम रहता है तो वो होने के बाद वंदे मातरम गीत गाया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी वंदे मातरम गीत नहीं गाया। भारतीय जनता पार्टी जो है इस देश के राष्ट्रगीत जन गण मन को भी नहीं बोलती थी, उनका तो अलग ही गीत है। एक बात ये, उनकी जो मातृ संस्था है आरएसएस तो तिरंगे को भी नहीं मानती। 1992 तक उन्होंने तिरंगे को नहीं फहराया, तिरंगा उनके कोई भी कार्यालय पे फहराया नहीं गया। और जो नागपुर के 2 कार्यकर्ता थे, आम पब्लिक थी, वो आम कार्यकर्ता किसी भी पार्टी के नहीं थे, उन्होंने आरएसएस के कार्यालय पे तिरंगा फहराने की कोशिश किए तो उनपे गुना दाखिल हुआ और आरएसएस के लोगों ने गुना दाखिल किया। तो इसका मतलब उनको ना इस देश का राष्ट्रगीत मान्य है, ना इनको इस देश का तिरंगा भी उनको मान्य नहीं। उनका राष्ट्रध्वज तो अलग है, भगवा, और ये अलग टाइप का है। ना इनको इस देश का राष्ट्रगीत मान्य नहीं, इस देश की राष्ट्रध्वज मान्य नहीं, और इस देश का संविधान भी उनको मान्य नहीं। इसलिए बार बार कहते हैं कि संविधान में बदल होना चाहिए। संविधान के समीक्षा आयोग उन्होंने नियुक्त किया था अटल जी वाजपेयी के सरकार ने। तो ये जो बातें हैं ये लोगों के सामने दिख गया है कि ये 1942 का जो आंदोलन हुआ, चले जाओ आंदोलन, जिसका मुख्य जो लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत था वो ये वंदे मातरम था। और ये उस वक्त क्या किया था आरएसएस के लोगों ने कि आरएसएस के लोगों ने वंदे मातरम तो गाया ही नहीं, उल्टा जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके खिलाफ में जाके चले जाओ मूवमेंट का विरोध किया और अंग्रेजों के साथ मिल गए और चले जाओ मूवमेंट का उन्होंने बहिष्कार किया था, वो नहीं शामिल हुए हिंदुस्तान के लोगों के साथ। ये पूरा इतिहास आ गया, क्योंकि इनका इतिहास ही खराब है तो वही इतिहास सामने आया। वो दाव जो है उन पे उल्टा पड़ गया कि ये इस देश के राष्ट्रगीत को नहीं मानते, इस देश के राष्ट्रध्वज को नहीं मानते, इस देश के संविधान को नहीं मानते और इस देश की आजादी में उनका कोई योगदान नहीं था, ये तो अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। तो ये तो सिद्ध हो गया सर, इनका चेहरा तो बेनकाब हो गया। दोरे साहब, अमित शाह जी ने खुलेआम कर दिया पार्लियामेंट में कि द डिविजन ऑफ वंदे मातरम का जिस दिन टुकड़े टुकड़े कर दिए उस दिन द फाउंडेशंस ऑफ पार्टीशन वर लेड। पार्टीशन का मजबूत फाउंडेशन वहीं से उभरा है। ये आप नेहरू जी पे आरोप लगा दिए, कांग्रेस पे आरोप लगा दिए, तो हाउ डू यू सी अमित शाह जी ने जिस प्रकार से कहा? अमित शाह जी को ये भी उसके लिए माफी मांगनी चाहिए कि भाई आपकी मातृ संस्था आरएसएस ने ये क्यों नहीं किया था। जो 1942 में चले जाओ मूवमेंट हुआ और उसमें वंदे मातरम ये मुख्य गान था, लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत था। वंदे मातरम बोल के लोग गोलियां खाते थे, लोग फांसी पे चढ़ गए थे, उसमें एक भी इनका आरएसएस का कार्यकर्ता नहीं था। तो इसके लिए तो उन्होंने माफी मांगनी चाहिए कि हमारी तो बहुत बड़ी गलती थी, हम तो देशद्रोही थे, हम तो कोई देशभक्त नहीं थे। ये उन्होंने दुनिया को बताना चाहिए। और ये आज जो बोल रहे हैं कांग्रेस के बारे में, तो ये कब मानते थे वंदे मातरम को? अभी बात कर रहे हैं वंदे मातरम, अभी पश्चिम बंगाल का इलेक्शन है इसीलिए। लेकिन एक चीज है ढोने साहब, जो प्रियंका गांधी ने कहा, अरे यार मतलब मजा आ गया वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। उसके बाद जो उन्होंने किया, आई डोंट एग्री विद दैट वेरी फ्रैंकली, लेकिन जो स्पीच उन्होंने पार्लियामेंट में दी, मुझे इंदिरा जी की याद आ गई। ब्यूटीफुल, लवली, जिसने भी लिखी होगी, जिसने भी उनको एडवाइस किया होगा, बहुत अच्छा एडवाइस किया होगा। आई एम श्योर डॉक्टर अविरल मलिक साहब को भी बड़ा मजा आया होगा सुन के। पूजा मिश्रा जी ने अगर सुनी है तो उनको भी बहुत मजा आया होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने यह तो बताया कि 1896 के अधिवेशन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम गाया, लेकिन किसका अधिवेशन? आरएसएस का अधिवेशन था, विश्व हिंदू परिषद का था, हिंदू महासभा का था। अरे किसका अधिवेशन था? कांग्रेस का नाम लेने में क्या गड़बड़ हो गई ये तो बता दो।
कांग्रेस का नाम क्यों नहीं लेते? कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया भाई। अब ये क्या है डॉक्टर ढोने, ये बताइए सर। बाय द वे वी गॉट थ्री डॉक्टर्स विद अस टुडे। वाओ वंडरफुल। हाँ बोलिए सर, डॉक्टर ढोने बोलिए। हाँ सर, ऐसा है, ये तो दिख गया, पूरी दुनिया को मालूम पड़ा कि कांग्रेस ने इस गीत को राष्ट्रगान के तौर पे माना है। और हर कार्यक्रम में आजादी के पहले भी कांग्रेस ही इस गीत को लेके आई थी, ये तो मान गए। अब ये ऐसा है कि कांग्रेस की गलतियां रही कि ये जो है आरएसएस के, जो आरएसएस पे किताबें छापनी चाहिए थी कि आरएसएस का काम किस तरह से होता है, इनका उद्देश्य क्या है, तो ये कांग्रेस ने नहीं किया, ये गलती हो गई। तो अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारी जो गलतियां है वो सुधारने के लिए हमको मदद कर रहे हैं। कि अभी इस पे वंदे मातरम पे चर्चा हो गई, कभी तिरंगे पे चर्चा होनी चाहिए, आरएसएस का राष्ट्रगीत कौन सा है, देश का राष्ट्रगीत कौन सा है, तो ये सब पे चर्चा होनी चाहिए। तो इनका चेहरा दिखेगा कि ये कोई देशभक्त लोग है नहीं और ये देश को मानते भी नहीं। दोनों सब, मगर जो और आपको बात बताऊं, जितने भी ने देश के साथ धोखा किया है और पाकिस्तान के साथ जो मिले हुए लोग हैं, उनमें से ज्यादा लोग तो इनके ही लोग हैं। तो क्या अमित शाह जी दोनों साहब, अमित शाह जी जो कहा कि पार्टीशन और वंदे मातरम के तोड़ने में दोनों में एक ये है, टुगेदरनेस है कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, यानी टुकड़े टुकड़े करना और पार्टीशन होना, दोनों में एक सिमिलरिटी है। पार्टीशन की जो मुख्य संकल्पना थी, पार्टीशन की जो मुख्य संकल्पना थी वो तो जिन्ना की थी और हिंदू महासभा की थी। और स्वातंत्रवीर सावरकर ने बताया था कि वे मुसलमानों का अलग देश रहना चाहिए और ये ऐसा हो नहीं सकता कि हिंदू और मुसलमान एक साथ रहे। ये स्वतंत्र जो सावरकर, जो विनायक दामोदर सावरकर, इनकी एक जैसी विचारधारा थी और वही सावरकर जो है उनकी हिंदू महासभा मुस्लिम लीग के साथ सत्ता में शामिल हो गई थी। तो ये इनको कैसे, ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, पाकिस्तान के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये एक दूसरे से मिले हुए लोग हैं। इनके जो सत्ताधारी लोग हैं, वहां के शासक और भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये दूसरे से मिले हुए हैं। आप ऐसा बोल लो तो हमारे देश के लोग खुश हो जाएंगे, आप ऐसा करेंगे तो हमको मौका मिलेगा, आप इधर हिंदू मुसलमानों के खिलाफ कुछ करेंगे तो हमको कुछ मुद्दे मिलेंगे। लेकिन फिर तो जो पाकिस्तान चाहता है, नहीं, जो पाकिस्तान चाहता है वही भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है उससे सबसे ज्यादा अगर कोई खुश है तो पाकिस्तान खुश है। लेकिन डॉक्टर ढोने ये तो बता दें सर, ये सब तो ठीक है, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि उसी दिन प्रियंका गांधी जी ने इतना खूबसूरत भाषण दिया लोकसभा में, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी अप्रिशिएट किया उसको सर। उसके बाद स्पीकर साहब के कमरे में वो चली गई डीएमके के साथ, अखिलेश यादव जी भी वहां पर, वो भी यहां पर, उद्धव ठाकरे सेना भी वहां पर, टू इम्पीच अ जज। सर ये क्या है, व्हाट इज दिस सर? You want to impeach a judge because he is, he has given an order, एक जजमेंट आपके खिलाफ गई है तो आप उस जज को impeach करोगे? सर, the remedy lies in the Supreme Court. Go to the Supreme Court. At least, मतलब I don't understand this. और जैसे डॉक्टर पूजा मिश्रा ने पॉइंट आउट किया वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जज साहब का रिकॉर्ड अगर आप देख लें आउट ऑफ द कोर्ट और विद इन द कोर्ट ऑल्सो, जो उन्होंने रिमार्क्स पास किए हैं, that does not behove a judge. Let's be very clear. No judge should speak like this. But वो अभी याद आया आपको? ये तो पहले करना चाहिए था ना, एक साल पहले कर देते। डॉक्टर ढोने, what is this sir? Why is the Congress joining this? आप बताइए ढोने साहब। सर ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उन्होंने जजमेंट देना चाहिए, रिमार्क नहीं बोलनी चाहिए। क्यों आप रिमार्क बोलते हैं? आप जजमेंट दो, जो आपको लगता है आपके सामने जो तथ्य है उस पर बात करो, उस पर जजमेंट दो। आप वो छोड़ देते हैं और अपना खुद की जो विचारधारा है वो बताने की कोशिश करते हैं कि कोई भी देशभक्त आदमी इस तरह की बात नहीं कर सकता। अरे आपको क्या पता है? आप जज की कुर्सी पे बैठे तो क्या भगवान बन गए आप? जज की कुर्सी पे बैठ के आप बोल रहे हैं कि हम देश के लिए बोलते हैं कि देश में ऐसा हो रहा, हमारे देश में जुल्म हो रहा, गरीबों पे जुल्म हो रहा, तो ये हम कहीं भी बोलेंगे, हिंदुस्तान में बोलेंगे, हिंदुस्तान के बाहर बोलेंगे। सरकार ने सुधरना चाहिए कि इस पे आवाज उठ रही है, गरीबों पे जुल्म हो रहा, माइनॉरिटी पे जुल्म हो रहा,
तो इस पे जो आवाज उठ रही सरकार ने उससे सीख लेके बैकफुट पे आना चाहिए या कुछ सुधार होना चाहिए। लेकिन तो सर ये ऐसा तो नहीं होता है, जज डॉक्टर जज डोने ने बहुत ये बढ़िया, देखना चाहिए कि वो किस तरह का मुद्दा बोल रहे हैं, माशाल्लाह सर, हकीकत में माशाल्लाह, ऐसा हो बहुत रहा है कि अच्छे। नहीं हो रहा। तो जज बोलते हैं कि ये कोई देशभक्त का काम नहीं है, तो ये क्यों बोल रहे हैं डॉक्टर आप? डोने, मैं जाता हूं डॉक्टर मलिक के पास। अभी तक अविरल मलिक जी ने कुछ नहीं बोला है। कहने का मतलब ये हुआ, अविरल मलिक जी आप तो बड़े खुश होंगे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ने आपको एक बहुत बढ़िया हथियार दे दिया। जहां पर आप अंडर प्रेशर थे वंदे मातरम के इशू पे, आपको तो बहुत बढ़िया हथियार मिल गया अभी कि मदुराई में जो कार्तिकाय दीपम है, द होली दीपम, उसके खिलाफ डीएमके थी, अब तो समाजवादी पार्टी भी हो गई, उद्धव ठाकरे की सेना भी हो गई, कांग्रेस भी हो गई। अब तो आप बड़े जोर शोर से छाती ठोक के कहेंगे, जैसा कि कह रहे हैं, देखो ये सब लोग एंटी हिंदू हैं, हिंदुओं के खिलाफ है, हिंदू विरोधी हैं, है कि नहीं? अब आप बोलें सर, डॉक्टर अविरल मलिक बोलिए सर प्लीज। जी नहीं, देखिए जहां तक विषय एक तरीके से एंटी हिंदू होने का, जी। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। अगर कोई हिंदुओं का विरोध करेगा, सनातनियों का विरोध करेगा, तो निश्चित रूप से जनता अपने आधार पे तय करती है। सब कुछ जनता के हाथ में सब कुछ है और मताधिकार के आधार पे सब कुछ तय होता है। तो जनता अपने हिसाब से सबक सिखा देगी और सबसे बड़ी अदालत अगर कोई होती है तो जनता की अदालत ही होती है। नंबर 2, जहां तक विषय वंदे मातरम का सम्मान होना चाहिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और उसके साथ साथ चाहे राष्ट्रगीत का विषय हो, राष्ट्रगान का विषय हो, संविधान का विषय हो, लोकतंत्र का विषय हो, मीडिया का विषय हो, तो मैं समझता हूं सबका सम्मान होना चाहिए। लोकतंत्र के सभी स्तंभों का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो एग्जीक्यूटिव के सम्मान का विषय हो, लेजिस्लेचर के सम्मान का विषय हो, या फिर एक तरीके से मीडिया के सम्मान का विषय हो, जुडिशरी के सम्मान का विषय हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के सम्मान का विषय हो, या इलेक्शन कमीशन जो एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है उसके सम्मान का विषय हो। तो मैं समझता हूं सबका सम्मान आवश्यक है, अनिवार्य है, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। और कोई बीजेपी का है इसलिए करना आवश्यक है, ऐसा भी नहीं है। चाहे कोई किसी भी राजनीतिक दल का, बीजेपी का है, कांग्रेस का है, सपा का है, बसपा का है, आम आदमी पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी का है, लेकिन सबसे पहले वो एक भारतीय है और एक भारतीय होने के नाते उसका परम कर्तव्य है कि वो संविधान में, कानून में, नियमों में विश्वास रखे। और निश्चित रूप से लोग रखते हैं और रखना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और डॉक्टर मलिक, नेशनल कॉन्फ्रेंस एमपी रमजान साहब ने खुलेआम पार्लियामेंट में कहा कि इस्लाम प्रोहिबिट्स सिंगिंग वंदे मातरम। जो भी इस्लाम को बिलीव करते हैं वो वंदे मातरम नहीं गाएगा। इसको फर्दर सब्सटैंशिएट किया मौलाना मदनी भी कहा कोई भी मुस्लिम वंदे मातरम नहीं गाएगा। तो क्या तुष्टीकरण, कांग्रेस, सपा, इंडिया अलायंस तुष्टीकरण और उसके ऊपर इम्पीचमेंट ऑफ स्वामीनाथन, जस्टिस स्वामीनाथन, तो ये क्या टोटली एक इम्पीचमेंट की तरफ जो कहते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति है? किस प्रकार से देखते हो आप? नहीं, देखिए जहां तक विषय एक तरीके से जहां तक कुछ मुस्लिम लोगों का विषय है और पर्टिकुलर एक तरीके से मदनी साहब का विषय है, तो मैं समझता हूं वो मेरे लिए किसी रूप में संविधान नहीं है, मेरे लिए वो लोकतंत्र नहीं है, मेरे लिए वो न्यायपालिका नहीं है, मेरे लिए वो जज नहीं है, और जो कि एक तरीके से वो तय करें। जी बोलिए सर, बोलिए। जी बिल्कुल। देखिए वो किसी रूप में हमारे लिए लोकतंत्र नहीं है, संविधान नहीं है जो वो लोग तय करें कि भाई क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए। और जहां तक विषय है एक तरीके से मदनी साहब का, तो मैं समझता हूं राष्ट्रगीत का, राष्ट्रगान का, संविधान का, लोकतंत्र का, माँ भारती का अपमान करना किसी रूप में उनके जुरिस्डिक्शन एरिया में नहीं आता कि वो तय करेंगे कि किस प्रकार से इनको अपमानित किया जाए। ये पूर्ण रूप से गलत है। और जहां तक विषय एक तरीके से मुस्लिम समुदाय का, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सबको बराबरी का अधिकार प्रदान करने वाले लोग हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस नारे के आधार पर चलने वाले लोग हैं। एक भारत और श्रेष्ठ भारत की बात करने वाले लोग हैं। जब एक भारत की हम बात करते हैं उसमें सभी जात, पंथ, संप्रदाय के सभी लोग आ जाते हैं। इस चीज को याद रखना चाहिए। और आपने शुरुआत में कहा था कि सपा और कांग्रेस, देखिए अब सपा और कांग्रेस को एक साथ मिलाना फायदेमंद नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी गठबंधन तोड़ने जा रही है कांग्रेस पार्टी से, ये भी बिल्कुल स्पष्ट है। अगर समाजवादी पार्टी के इतिहास की बात कर जाए, नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का अपमान करने वाली अगर कोई पार्टी है तो यही कांग्रेस पार्टी है। इसी कांग्रेस पार्टी ने नेताजी का अपमान किया, 1975-77 के मध्य में जेल भेजने का उन्हें काम किया। जितने भी समाजवादी नेता रहे सबको जेल भेजा गया आपातकाल को लगा के, चाहे शरद चरण सिंह जी रहे हों, अन्य नेता रहे हों, मुरली मनोहर जोशी जी रहे हों,
एल के अडवाणी जी रहे हों, अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हों, मोरारजी देसाई जी रहे हों, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी रहे हों, सबको जेल भेजने का काम इसी कांग्रेस पार्टी ने किया जो आज संविधान की बात करती है। तो मैं समझता हूं मैंने पूरी स्पीचेस सुनी अखिलेश जी की, तो अखिलेश जी की अगर बात कर जाए अभी के दौर की, वो कई सारी बातें ऐसी करते हैं कि बीजेपी के कंधे पे रख के बंदूक चलाने का काम एक तरीके से वो करते हैं और निशाना उनका होती है कांग्रेस पार्टी। तो मैं समझता हूं जब अखिलेश जी संविधान की बात करते हैं, आप देखना जब अखिलेश जी लोकतंत्र की बात करें और संविधान की बात करें तो एक तरीके से निशाना साधते हैं डायरेक्ट कांग्रेस पार्टी आप अपने लिए तकलीफ ला रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल लगा के संविधान लोकतंत्र का जनाजा निकाला था। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं डॉक्टर अविरल मलिक, उसके आपके बाद में सीधा डॉक्टर पूजा मिश्रा के पास जाता हूं। आप अपने लिए तकलीफ बढ़ा रहे हैं सर, मैं सीधी बात बोल रहा हूं। अगर आज मान लीजिए समाजवादी पार्टी कांग्रेस से अलग हो जाती है ना, तो जितनी सीटें अभी समाजवादी पार्टी की आई थी ना पिछले 2024 के चुनाव में, मैं आपको लिख के दे देता हूं सर, अगर कांग्रेस वहां पर नहीं होती, हमने एनालिसिस किया है, अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस नहीं होता तो समाजवादी पार्टी को मिनिमम 52 सीटें आती कम से कम। ये कांग्रेस ड्रैग्ड इट डाउन सर। अगर आज की तारीख में कोई लायबिलिटी है समाजवादी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में तो वो कांग्रेस है। चलिए छोड़ दीजिए, आप जो एडवाइस उससे दे रहे हैं मुझे तो शक हो रहा कहीं आप समाजवादी पार्टी पे तो नहीं जा रहे। लेकिन डॉक्टर मलिक आप ये बताएं सर, क्या है कि वंदे मातरम का इशू अगर उसको फिनिश कर लें, और उसके बाद एक और छोटा सा सवाल है, वंदे मातरम के लिए कोई कंपल्शन नहीं है, जनगण मन के लिए कंपल्शन है कॉन्स्टिट्यूशनली एंड अदरवाइज। नेशनल एंथम जब बजता है हर हिंदुस्तानी को गाना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वंदे मातरम के लिए सिर्फ यह है भाई आउट ऑफ रिस्पेक्ट यू स्टैंड अप, आप खड़े हो जाइए, लेकिन कंपल्शन नहीं है गाने के लिए। दिस इज व्हाट द लीगल पोजीशन इज, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इज। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स, मैं आपको बता दूं, मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम सिंग वंदे मातरम, दे फाइंड नथिंग रॉन्ग इन इट। लेकिन एक चीज है सर, डॉक्टर अविरल मलिक साहब, एक चीज के ऊपर जरा रोशनी डालें सर। आज डॉलर का रेट क्या है आपको मालूम है? डॉलर का रेट क्या है यूएस डॉलर का? शायद आपको मालूम नहीं होगा। 90 रुपए 59 पैसे का, 90 रुपीज 59 पैसा सर। अब सेंचुरी मारने की कगार पे है सर। ये वही डॉलर है, मतलब ये कहा जाता था जब रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की छवि गिरती है। सर अभी किसकी छवि गिर रही है सर? अविरल मलिक साहब अगर आप इस पर रोशनी डालें तो। जी बिल्कुल। नहीं देखिए, जहां तक वित्त मंत्री जी का विषय है, माननीय वित्त मंत्री जी ने भी इस विषय को स्पष्ट कर दिया। रुपया मजबूत है, मजबूत होगा और रुपया अपनी जगह अपने आप बना लेगा, रुपया अपनी जगह अपने आप बनाएगा, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और अपने देश को हमेशा नीचा समझना या कमजोर समझना मैं समझता हूं पूर्ण रूप से गलत है। और ये वही भारत है जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, कहा जाता है और सर्वदा कहा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। Right. So let me go across to Dr. Pooja Mishra. Dr. Pooja Mishra, the dollar is today at 90 rupees 59 paise, ma'am. Congratulations. We are heading to a century. आप बताएं. Wonderful news, isn't it? Very good news. राजीव जी, बोलिए. भाजपा के प्रवक्ता के अनुसार अगर आत्मबोध होता है तो वो कमजोरी होती है। जी. बढ़िया डेफिनेशन है। जैसे कि जो है जिन्ना 1948 में डेथ हो जाने के बाद में आकर के फिर नेहरू जी से कहते हैं कि वंदे मातरम में से ये स्टैंजा हटा दीजिए, बढ़िया है। और उसके बाद में अभी जो है इनको बड़ी याद आई श्रद्धेय नेताजी की, जबकि जो पानी पी के गालियां देते हैं, हम लोग कहते हैं भाई जनता ने उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया हुआ है, तो ये लोग इस दुनिया में नहीं है। अब उनसे हम लोग आकर के जवाब भी नहीं मांग सकते हैं, ना उनसे सवाल पूछा जा सकता है, तो उनको बख्श दिया जाए। लेकिन तब भी नहीं बचते, इनको इमरजेंसी याद आ गई। पर इनको ये ध्यान नहीं आया कि जब वो रेलवे मिनिस्टर जब वो रेलवे डिफेंस मिनिस्टर थे तब वो किसकी सरकार में थे? आप तो विपक्ष में थे, तब कब आप उनका समर्थन कर रहे थे? आप अगर यही सब देखने लग जाएंगे कि पूर्वत में क्या हुआ, मैं एग्री करती हूँ प्रियंका गांधी जी से। प्रियंका गांधी जी ने जो सदन में कहा कि आप जिस तरीके से डिस्कशन कर रहे हैं ना, आप डिस्कशन रख लीजिए और जितने भी जो है प्रश्न पूछने हैं आपको नेहरू जी से और गांधी परिवार से, वो सारे प्रश्न आप पूछ लीजिए, 50 घंटे का डिस्कशन रख लीजिए। पर लेकिन वर्तमान की बात करिए, इसे बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एग्री करते हैं हम कि आप डिस्कशन करके लेकिन वर्तमान की बात कर ली जाए। आप बार बार खुदाइयां करते हैं, खुदाइयां करने से जो है भारत देश की उन्नति नहीं होने वाला। अभी इन्होंने कहा कि जो है आत्मबोध होना, वो ये कहता है कि आप कमजोर हैं। उनके सांसद ने कहा था कि रुपए से हमें क्या लेना देना, डॉलर से हमें क्या लेना देना, हम तो रुपए लेकर के चलते हैं, आपको पता ही होगा। कभी कभी मुझे लगता है कि जो गंभीर कलाकार नहीं होते हैं उनको जो है नहीं आना चाहिए पॉलिटिक्स में। चाहे जैसे भाजपा में इसमें बहुत भरमार है, कुछ भोजपुरी से कलाकार आए हुए हैं जो कहते हैं कि
डॉलर से हमारा क्या ताल्लुकात, हम तो रुपए से काम करते हैं। कुछ जो है ऐसे कलाकार आए हुए हैं बॉलीवुड से जो कहते हैं कि भारत देश आजाद 2014 में हुआ था। आयरनी देखिए जी। और फिर वही जो है सांसद सदन में खड़े होकर के 1983 में वोटिंग की बात कर रहे हैं। मतलब कम से कम आपको तो नहीं करना चाहिए था जी। जब आपने 2014 में आपके अनुसार भारत देश आजाद हुआ है, तो वोटिंग की चर्चा एटलीस्ट आपको नहीं करना चाहिए था आपके अनुसार, क्योंकि वो तब तो 1980 वेरी गुड, यू हैव रेज्ड द नागरिकता रही, कौन सा सब्जेक्ट। वोटिंग रहा। मैम यू हैव रेज्ड द सब्जेक्ट। आई वुड लाइक टू आस्क यू, डू यू थिंक इट इज फेयर 1983 की जो बात हुई, आई से इवन इफ इट इज ट्रू सो व्हाट, 1983 की बात है ना, आप छोड़िए ना, क्या है मतलब। अगर हम लोग जाएंगे ऐसे तो हम लोग, जैसे डॉक्टर ढोने ने कहा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, फाउंडर ऑफ द भारतीय जनसंघ, जिनको भारतीय जनता पार्टी अभी तक उनका अपना नेता मान करके पूछती है, ही मेड 3 गवर्नमेंट्स विद द मुस्लिम लीग, बंगाल में, सिंध में, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में। व्हाट इज दिस? आई मीन आप कितने गड़े मुर्दे उखाड़ोगे? मेरा तो ये मानना है। आप बोलें प्लीज कंप्लीट मैम प्लीज। आपने देखा होगा अभी जो सदन चल रही थी, अभी पार्लियामेंट जो भी सेशन शुरू हुआ, एक तो हम लोग पार्लियामेंट में नया कल्चर सुनने लगे हैं कि जैसे ही स्पीकर बैठते हैं ना, ये बड़ा अजीब सा फील होता है कि हम जो स्पीकर महोदय होते हैं वो कहते हैं विपक्ष का एक भी स्थगन प्रस्ताव मंजूर नहीं किया गया। इस चीज से एज अ भारत देश के नागरिक होने के नाते भी मुझे इस चीज से आपत्ति है कि अगर जो है विपक्ष कोई स्थगन प्रस्ताव दे रहा है, 10 दे रहा है, एक तो मंजूर करिए, पता तो चले कि विपक्ष क्या चाहता है, विपक्ष कौन सा पॉइंट रखना चाहता है। आप उनको मना करके विपक्ष की आवाज को वहीं दबा दे रहे हैं। उसके बाद में आपको SIR पे नहीं चर्चा करनी है, घूम फिर करके आप आते हैं इलेक्शन रिफॉर्म पे चर्चा करने के लिए। और इलेक्शन रिफॉर्म पे जब चर्चा होती है सदन में राजीव जी, तो जो सजेशन दिए जाते हैं उस सजेशन को लेकर के आप डिस्कस ही नहीं करते हैं। आप सोचिए कि समाजवादी पार्टी की तरफ से 5 सजेशन दिए गए थे, जिसमें से एक सजेशन मुझे बहुत बेहतरीन लगा था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का, कि उन्होंने कहा जो नेगेटिव कैंपेन होता है, नो मैटर हु एवर द पार्टी इज, ये पूरी तरीके से बैन हो जाना चाहिए। और ये आने वाले समय AI जिस तरीके से एडवांस हो रहा है उसके लिए बहुत सही है। और हमने ये भी कहा था, एक प्रस्ताव रखा था कि अगर इलेक्शन कमीशन जो है पारदर्शी है तो वो पारदर्शी दिखना भी चाहिए। वहां पे एक ऐसी सिस्टम बनाया जाए जहां पे कम से कम CGI का इन्वॉल्वमेंट रहे, वो दिखे तो सही कि यहाँ पे पार्शियलिटी नहीं हो रही है। लेकिन जब जवाब आता है सरकार की तरफ से या इस पर डिस्कशन आता है, तो आप बताइए कि एक भी वो लोग ऐसे कर रहे हैं कि जैसे प्रश्नोत्तरी चल रही है और डिबेट चल रहा है इस तरीके से, जिसमें कह दिया गया है कि ये हाथी है, एक कह रहा है कि नहीं ये हाथी नहीं चींटी है, और एक साबित कर रहा है कि नहीं ये हाथी ही है और ये चींटी ही है। ऐसा नहीं चल रहा है कि विपक्ष ने कोई सुझाव रखा है, कोई डिस्कशन दे रहा है तो उस पर आप ये बोले कि हाँ आपका ये पॉइंट सही है, हम इस पर डिस्कस कर सकते हैं, आपका ये पॉइंट गलत है, हम इस पर डिस्कस नहीं करना चाहते। और सत्ता पक्ष की एक बात बहुत खराब है, वो बात ये खराब है कि वो पर्सनल चलते चले जाते हैं सारे विपक्ष के नेताओं पे। और आप यहीं पे उठा करके देखेंगे कि विपक्ष के सारे नेता, किसी ने एक बार भी नहीं बोला कि जो है माननीय गृह मंत्री महोदय को तड़ीपार कर दिया गया हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो है पर्सनल इतिहास क्या रहा है। लेकिन ये जब भी खड़े होते हैं, ये खड़े होने के बाद में चाहे वो समाजवादी पार्टी का पर्सनल जो इतिहास हो, चाहे वो कांग्रेस का पर्सनल इतिहास हो, विपक्ष के सारे पर्सनल इतिहास पे जाते हैं। और ये जो डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, योगी जी कह रहे, यही कह रहे जो आप कह रहे, बोले कि देखो यूपी को हम डिजिटल डेस्टिनेशन बना रहे, ग्लोबल डिजिटल डेस्टिनेशन, 14,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे, 60,000 जॉब्स पे क्रिएट कर रहा हूं। आपके चैनल का हम स्वागत करते हैं 15 तारीख को। आइए लोक सेवा आयोग के सामने हम आपको दिखाएंगे कि छात्र कहाँ पे है। 15 दिसंबर 2025 उसी पे प्रोटेस्ट पे प्रदेश प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के ऑफिस के सामने आप आइए, आप देखिए कि उत्तर प्रदेश का युवा क्या चाहता है और वो कहाँ पे। और आगे जाके योगी जी कह रहे कि देखो यूनेस्को इज रिकॉग्नाइज दीपावली, हमने जो यहाँ पर जो दीप मिलन वगैरह किया था उसको यूनेस्को ने रजिस्टर कर दिया, क्या दिस विल बी अ कांटेक्ट पॉइंट फॉर फेस्टिवल्स। तो डेवलपमेंट हो रहा है। उन्होंने आगे जाके कहा कि मैं कह तो रही हूँ, मैं आपके चैनल को इन्विटेशन देती हूँ, आपके चैनल को नहीं, जो भी आपके व्यूअर्स है जो देख रहे हैं वो 15 तारीख को आ जाए। इससे पहले आपने जो है देखा था 10 दिन तक धरना प्रदर्शन चला था लोक सेवा आयोग के सामने।
अभ्यर्थियों का 15 तारीख को आप फिर आ जाइए इलाहाबाद में और लोक सेवा आयोग के सामने देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश का युवा जिनकी आप बात कर रहे हैं, नए जनरेशन की बात कर रहे हैं, वो क्या चाहता है, वो कितना परेशान है। ये बहुत जरूरी है कि आप जो आंकड़े बना करके रखे हुए, मुझे लगता है कि वो जो शायरी लिखी गई थी ना कि तेरे किताबों में गाँव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े जो है फरेबी, और जो बनाया गया हुआ था वो इसी दिन के लिए बनाया गया था, ऐसा लगता है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, चाहे वो घुसपैठियों की बात करें, चाहे वो यूनेस्को की बात करें, चाहे पूरे दुनिया जहां सितारों चांद की बात कर ले जाए, लेकिन वो उत्तर प्रदेश की धरातल पर नहीं है, उसकी समस्याओं को एक्नॉलेज नहीं करते हैं। और इसी का परिणाम निकल करके आता है कि पूरे जो छात्र होते हैं, महिलाएं होती हैं, आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में प्रोटेस्ट किस लेवल का होता है। आपको पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में प्रोटेस्ट चल रहा है, पुलिस लाठियां भाज रही है, वाटर कैनन छोड़ रही है, गैस के गोले फेंक रही है, आंसू गैस के। क्यों? क्योंकि इतनी परेशान है जनता कि उतनी सड़क पे आती है। किसान सड़क पे आता है तो इनको लाठीचार्ज करना पड़ता है कंट्रोल करने के लिए, अगर युवा सड़क पे आता है तो इनको लाठीचार्ज करना पड़ता है, गैस के गोले फेंकने पड़ते हैं कंट्रोल करने के लिए। भाई डिक्टेटरशिप चल रही है आपकी कि आप जो आपका मन आएगा फैसला करेंगे, कोई सड़क पर उतरेगा उसको आप मार करके अंदर करेंगे। 15 तारीख को आपको जितनी बातें आप कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, सबका एकदम बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रदर्शन देखिए। आगे योगी जी सुनिए, आगे योगी जी कह रहे हैं कि लखनऊ में देखो डेवलपमेंट, हाईएस्ट सोलार रूफटॉप इंस्टॉलेशंस, हाईएस्ट लखनऊ में। और उनका कहा इतने डेवलपमेंट हो रहे मगर कुछ मीर जाफर और कुछ जयचंद लोग बांट के, समाज को बांट करके यूपी को खराब नाम दे रहे। हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट? ये सारे स्टेटमेंट सिर्फ चुनावी के तरीके से होता नहीं, ये फेंका जा रहा है कि किसी तरीके से कुछ तो बोला जाए, कुछ तो ऐसा क्रिएट किया जाए कि जो है ये वेज क्रिएट कर दे, जो हिंदू मुसलमान कर दे, ये विरोध पैदा करे। क्योंकि जो धरातल की सच्चाई है इनको पता है, इनकी मजबूरी है कि इनको प्रोटेस्ट को परमिशन देने पड़ते हैं, क्योंकि अगर प्रोटेस्ट को परमिशन नहीं देंगे तो इतना मास एजिटेशन होगा ना उत्तर प्रदेश में कि इनसे संभाले नहीं संभलेगा। और उन सबकी घबराहट है कि कभी घुसपैठियों का बहाना लेकर के चल रहे हैं कि डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। आप सोचिए 27 में चुनाव है, 27 में चुनाव है, आपके पास में रिपोर्ट कार्ड नहीं है, आप तरक्की की बात नहीं कर सकते। आपका युवा एजुटेशन कर रहा है, किसान एजुटेशन कर रहा है, फीमेल एजुटेशन कर रही है। आपके यहाँ पे जितने आपने धरने स्थल बना रखे हुए, आपको सड़क पे धरना नहीं दिखता, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने सख्त नियम बना रखा है कि सड़क पे धरने प्रदर्शन नहीं होंगे। अगर आपको मार्च करना है तो आप मार्च करेंगे 10 मिनट, उसके बाद में आप धरने प्रदर्शन पे आ जाएंगे स्थल पे और वहीं धरना प्रदर्शन करेंगे, और वो आपको कवर करने को मिलेगा नहीं, वो आप वहीं बैठे रहेंगे। उसके अलावा धरना प्रदर्शन महीनों चलता रहे, इसीलिए आपको नहीं पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में अभी भी जितने धरने प्रदर्शन स्थल है, आप चले जाएंगे, आपको धरने प्रदर्शन करते हुए लोग मिल जाएंगे। जो प्रदीप जी ने अभी बताया, स्पेशली दीपावली को लेकर के और देव दीपावली को लेकर के स्पेशली यहां पर मेरी आपसे शिकायत है, और डॉक्टर ढोने से तो हमेशा ही शिकायत रहती है, दोनों आपसे और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से मेरी बहुत बड़ी शिकायत रहती है मैम। 1985 वीर बहादुर सिंह जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, सबसे पहली देव दीपावली वहां पर मनाई गई, सबसे पहली ऑफिशियल दीपावली जो होती है, मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दूं, 15 दिन के बाद बनाई जाती है, कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन। ये कहा जाता है कि सारे देवता धरती पर आते हैं, और उसकी कई प्रथाएं हैं कि त्रिपुरासुर को मारा शिव जी ने, या वामन अवतार आए वहां, इसके लिए होती है। बेसिक प्रथा ये है कि देवताओं ने कहा आपने मनुष्यों के साथ तो दीपावली मना ली, हमारा क्या, तो इसलिए काशी में सारे देवता आते हैं, गंगा स्नान करते हैं और देव दीपावली मनाई जाती है। द फर्स्ट ऑफिशियल वन वाज सेलिब्रेटेड एट दी 5 गंगा घाट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एट काशी इन 1985। लेकिन इसको जो ये स्वरूप आज का है, डॉक्टर ढोने सुनने वाली बात है, शुरुआत आपने करी, लेकिन आज का जो स्वरूप है ना, इंटरनेशनल स्वरूप जो है देव दीपावली का, वो दिया मुलायम सिंह यादव जी ने, मुख्यमंत्री जी ने। एंड आई विद ग्रेट प्राइड आई कैन से वी वर द फर्स्ट चैनल एट सहारा टू टेलीकास्ट इट लाइव। सबसे पहले हम लोगों ने लाइव टेलीकास्ट किया देव दीपावली का। लेकिन डॉक्टर पूजा मिश्रा, आप लोग क्रेडिट लेते नहीं हैं, आप लोग लोगों को बताते नहीं हैं, तो फिर जब बीजेपी आकर के उसको और भव्य बना देती है और बताती है हम लोगों ने ये किया, फिर आप बताते हैं भाई ये तो हमने शुरुआत करी थी। शुरुआत आपने करी थी,
लेकिन आपने बताया क्यों नहीं लोगों को? अब आप बताएं डॉक्टर पूजा मिश्रा प्लीज। बात सही कह रहे हैं कि हमें भी जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए लगभग 600 करोड़ रुपए एलोकेट कर देना चाहिए था। उसमें से 450 करोड़ सिर्फ प्रचार में खर्चा कर देना चाहिए। इतना जमीन हमारा मरा नहीं है ना। अगर इतना जमीन मरा होता तो जो है हम ये कर लेते। ये हमारा, मैं एग्री करती हूँ। अगर आप इसे फेलियर मानते हैं कि हम योजनाओं पे खर्चा करते हैं, प्रचार पे कम खर्चा करते हैं, तो ये हमारा फेलियर है। हमने योजनाओं पे पैसे जो थे योजनाओं पे ही किए, प्रचार पे कम किए। जंगल में मोर नाचा किसने देखा मैम? यूपी के लोगों को मालूम है, हम लोगों को मालूम है क्या हुआ। हमें तो मालूम है ना किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता था उस वक्त। हमें तो एक एक चीज मालूम है भाई। देव दीपाली आज भी, इससे पहले भी हमारी सरकार रहते हुए आप आइए संगम घाट पे, मालूम है मैम, मालूम है। अरे मुझे क्या, आप मुझे क्या बता रही है? खाना भले नहीं बना, अरे मैंने तो कवर किया है। ये सरकार यही कहती है। केशव प्रसाद मौर्य जी ने बोला लड्डू जल्दी मत खरीदिए अखिलेश यादव जी, लड्डू 2047 में, उसके बाद आप इस्तेमाल करिए लड्डू का। 2027 में कुछ नहीं होने वाला है। और आपका पीडीए एक फॉल्स प्रोपेगेंडा है, फॉल्स प्रोपेगेंडा फैमिली डेवलपमेंट एजेंसी है। नाउ हाउ डू यू सी द स्टेटमेंट? ही इज वेरी कॉन्फिडेंट। प्रदीप जी वो जो है फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति है, उनकी बातों को गंभीरता से मत लिया करिए। वो अपनी धूली तराश रहे हैं, ना तो अपने जिले में है ना अपनी विधानसभा में है। आपको पता है किस तरीके से उप मुख्यमंत्री बने हुए। इनका अपना खुद का अलग द्वंद चलता है, कभी सरकार संगठन से ऊपर तो कभी संगठन सरकार से ऊपर, कभी दिल्ली तो कभी लखनऊ। आपको जानकारी नहीं है जो अमित शाह जी है और केशव प्रसाद मौर्य जी है, इनका संबंध, जो हमारे मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के और जो है अमित शाह जी है, उनका संबंध, हमारे दूसरे डिप्टी सीएम है। ये तो तीन है ना, ये तीन उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री नहीं है। अगर आप उत्तर प्रदेश के लोगों से पूछेंगे तो आप सब जानते हैं कि ये सब ननद भौजाई हैं। ये इनके अपने अलग द्वंद चल रहे हैं। और क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जी, अगर उनका सीरियस ग्राउंड में कहूँ, इन्होंने अपना पूरा जिला हारे हैं, उनको जनता ने बुरी तरीके से नकारा हुआ है। वो अपने आप को साबित करते रहते हैं कि कम से कम अखिलेश यादव जी पे ऐसे कटाक्ष मारते रहे ताकि वो न्यूज में रहे, उनको लोग देखें, उन पे डिस्कशन करें। अदरवाइज आप बता दीजिए कि केशव प्रसाद मौर्य जी हाल के साल 2 साल में ऐसा कौन सा कार्य करके न्यूज में आए हैं? आप जितनी बार उनके डिस्कशन करेंगे उतनी बार डिस्कशन में यही रहेगा कि वो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी को कुछ कहा है। डॉक्टर ढोने जी रहे तो हम सोचते उनकी राजनीतिक रोटियां अब सिक रही है, सेकते रहे। Dr. Dhone, sir, today the gold reserve with the Reserve Bank of India is 880 tons. 880 टन है सर, 880 टन सोना है अभी हिंदुस्तान के पास, और डॉलर की कीमत अभी 90 रुपए 59 पैसे है, 90 रुपीज 59 पैसा। तो डॉक्टर ढोने आप बताएं सर, देश तरक्की कर रहा है डॉक्टर ढोने? सर इसको कैसे तरक्की कैसे बोल सकते हैं सर? आप बताइए। जो डॉलर है ये आप 90 रुपीज देंगे, 59 सर, 59 पैसे बहुत होते हैं। क्या बात? हाँ वही 1950, हाँ 90 रुपीज 59 पैसा जी। इतना रुपए देने के बाद $1 मिलेगा जी। तो ये तो बहुत है ना। देश की हालत खराब हो रही, देश की अर्थव्यवस्था जो बोल रहे हैं देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई। अभी एक आया है सर कि देश की पूरी जो प्रॉपर्टी अर्थव्यवस्था और जो मजबूत हो रहा है, अमीर लोग और अमीर हो गए और गरीब हो रहा, यही हो रहा है। तो ये परिस्थिति हो गई आज, देश की अर्थव्यवस्था खराब हो रही है। तो डॉलर का गिरता जो स्तर है इस पर से दिख रहा है कि रुपयों की वैल्यू नहीं रही, रुपए की वैल्यू गिर रही है। तो इस पर से तो दिख रहा देश की अर्थव्यवस्था। आप विश्व गुरु की बात करते हैं, हम तो भारत विश्व गुरु है तभी मानेंगे जब हमारा $1 का हो जाएगा तो मानेंगे। ये तो दिन ब दिन गिरता जा रहा है और लोगों को लूटने का काम तो शुरू है। पेट्रोल पे, डीजल पे 15 लाख करोड़ उद्योगपतियों के माफ कर दिए। और हमारे महाराष्ट्र में तो ये चल रहा है सर कि 3000 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट है, 1 साल 2 साल उसको पेंडिंग में डालो और 2 साल के बाद उसके डायरेक्ट 3000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट रहता है उसको 6000 करोड़ करते हो। तो ये तो लूट मचे है सर। दोनों साहब अमित शाह जी ने खुलेआम पार्लियामेंट में कहा, अमित शाह जी ने कहा बोथ प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड अमित शाह फॉलो द आरएसएस आइडियोलॉजी।
हम आरएसएस आइडियोलॉजी में टोटली इन्वॉल्व है और आरएसएस आइडियोलॉजी से पैदा हुआ है। तो ये स्टेटमेंट किस प्रकार से देखते हो? बिकॉज और एक बीजेपी के एमपी ने एक बिल प्रस्तुत किया था कि सेक्युलरिज्म, ये वर्ड सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म हटा दो संविधान से, प्रियम्बल से। तो क्या एक स्टेप बाय स्टेप क्या दिख रहा है आपको? नहीं सर, ये तो ऐसा है कि अभी हमारे जो विरोधी पक्ष की जिम्मेदारी बढ़ गई है। ये जो इन्होंने बोला कि हम आरएसएस को मानते हैं, तो ठीक है, हम तो बोलते हैं कि आरएसएस को मानते हैं, तो आरएसएस की क्या विचारधारा है लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। जिस दिन लोगों तक पहुंच जाएगी आरएसएस की विचारधारा क्या है और सरकार में आने के बाद ये किस तरह से काम करते हैं और किसको मौका देते हैं, ये जनता तक पहुंच गया तो आसान हो जाएगा बाकी काम जी। तो तो इनका तो उद्देश्य ही मालूम पड़ेगा दुनिया को कि इनका क्या उद्देश्य है ना। मोहन भागवत जी ने कहा तमिलनाडु कंट्रोवर्सी, जो मंदिर में दीपम जलाने वाली बात थी, उन्होंने, मोहन भागवत जी ने कहा अब तमिलनाडु के लोगों को बाहर निकलकर अपने जो है जो संकल्प है उसको निभाना पड़ेगा। तो किस प्रकार से स्टेटमेंट को देखते हो? क्या मोहन भागवत जी पूरे तमिलनाडु में जितने हिंदुत्व वोट्स है उसको पोलराइज कर रहे हैं? मोहन भागवत जी इसमें बोलना किस प्रकार से देखते हो आप? सर ऐसा है कि वो चाहते हैं कि सरकार का, देखिए सरकार का कोई काम ही नहीं बता रहे कि हमारी सरकार ने ये किया, बेरोजगारी दूर करने के लिए किया, काला धन हमने वापस लाया और हमने महंगाई कम कर दी है, हमने ये विकास किया, ये बताने को तैयार नहीं है। और हमने देश का नाम किस तरह से दुनिया में ऊंचा किया, ये बताने को तैयार नहीं, हवाई बातें करते हैं और हिंदू मुस्लिम का करते हैं। इससे उनको कैसा आसानी से, भोली भाली जनता है, भोली भाली जनता को लगता है कि भाई ये देखो अपने धर्म की बात करते हैं तो लोग फंसते हैं, घर से बाहर जाते हैं। तो यही उनको एक मौका मिल गया, एक अच्छा मार्ग मिल गया कि बगैर कुछ काम किए लोगों को धर्म के नाम की अफूह चटाए और फिर अपना सत्ता वापस लाए, सत्ता पे आ जाए। यही है। अभी बंगाल का इलेक्शन को देखते हुए उन्होंने जनगण वंदे मातरम का शुरू कर दिया, लेकिन वो फंस गए वंदे मातरम में, उनका ही बुरा इतिहास सामने आ गया। यही है, दूसरा कुछ। लेकिन दूसरी चीज क्या है कि वो जो हुमायूं कबीर साहब हैं, उन्होंने एक नींव रखी है, फाउंडेशन स्टोन रखी है, जिसका वो बोल रहे हैं वो बाबरी मस्जिद है। अब लोग ये कह रहे हैं कि यार बाबर तेरा चाचा है, मामा लगता था, ये क्या है मतलब। और लेकिन हुमायूं कबीर साहब की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो एक जमाने में वो बीजेपी में हुआ करते थे, फिर उसके बाद टीएमसी में गए, अब टीएमसी ने उनको सस्पेंड कर दिया है। डॉक्टर ढोने कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में? तो ऐसा सर ये जो ऐसे लोग है ना जो हिंदू मुस्लिम करते, मैंने जो बताया कि इस देश में हिंदू मुसलमानों में झगड़े हो, हिंदू मुसलमानों में दरार रहे, ये कौन चाहता है? ये पाकिस्तान चाहता है कि भाई यहाँ का मुसलमान असुरक्षित रहे। इस देश के मुसलमानों को लगना चाहिए कि हिंदुस्तान में अपने पे जुल्म हो रहा है और हिंदू मुसलमानों के बीच में वो असुरक्षित महसूस करे। ये पाकिस्तान की इच्छा है, वो इच्छा भारतीय जनता पार्टी पूरी कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो मिले हुए कुछ मुस्लिम लीडर है, जैसा हुमायूं कबीर है, अब उनको क्या जरूरत थी? अभी वो आ गए रहे मैदान में, हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे। भैया आप हुमायूं मस्जिद बोलो उसको, आप बना रहे तो हुमायूं मस्जिद हो गई, बाबरी मस्जिद कैसी हो गई जी। और ये तो सब अभी इलेक्शन को देखते हुए उन्होंने बोल दिया, आज ही डिक्लेयर किया हम पार्टी बनाएंगे, 135 सीटें लड़ाएंगे, हम असदुद्दीन ओवैसी साहब के एमआईएम से समझौता करेंगे। ये तो सब बीजेपी की साजिश है, दूसरा कुछ ही नहीं है। और जो इससे बीजेपी को फायदा होगा। और ये सुनिए, मैंने देखे हैं उसमें कि मुस्लिम समाज के जो कमेंट देखे मैंने, वो हुमायूं कबीर के खिलाफ बोल रहे लोग, ज्यादातर बोल उनके भी ध्यान में आ गया। महाराष्ट्र में अब कैसे राजनीति देख रहे हो कि दोनों हाउसेस में ऑपोजिशन लीडर नहीं है? उद्धव जी बोले, विजय विदेटीवार बोले, मगर देवेंद्र फडणवीस ने बोला कानून अपना काम करेगा, आपके पास एमएलए नहीं है, कानून के हिसाब से। हाँ, ऐसा है कि एमएलए जो बोल रहे हैं कि 10% की संख्या चाहिए। अब हाँ। 288 में चाहिए 29 अगर है तो उसको विधानसभा में विरोधी पक्ष नेता पद मिल सकता है। अभी 29 नहीं है, लेकिन हमारा फ्री पोल अलायंस था, ये हमने एक साथ मिलके अलायंस किया और जीता है। तो वो देखना चाहिए था कि भाई फ्री पोल अलायंस है, इनकी सीटें 29 से ऊपर है तो एक देना चाहिए। अच्छा एक बात, विधान परिषद में 78 सीटें है, 78 का मतलब ऐसा है कि हमको 8 सीट जिसके पास है वो विरोधी पक्ष नेता बन सकता है।
तो कांग्रेस के पास 8 सीट है विधान परिषद में, जी। तो कांग्रेस का हक है। हमने नाम भी दिया है सतेज पाटिल का, जो कि इनको विधान परिषद का विरोधी पक्ष नेता बनाया जाए। तो कहाँ बना रहे? 8 सीट कांग्रेस की है, आपको 8 सीट चाहिए, 8 सीट कांग्रेस की है, वहां पे भी नहीं बना रहे आप। तो नहीं, ये तो इनको correct। विरोधी पक्ष नेता ही नहीं चाहिए, क्योंकि विरोधी पक्ष नेता को अधिकार रहते हैं, उसको टाइम देना पड़ता है, वो सरकार के खिलाफ बोलेगा, उसको ज्यादा टाइम मिलेगा। इनके दुनिया भर के खराब काम चल रहे सरकार के, दिन ब दिन घोटाले हो रहे महाराष्ट्र सरकार में, तो उनको लग रहा है कि पूरे जनता के सामने उजागर हो गए, तो इसीलिए ये विरोधी पक्ष नेता किसी को नहीं बना रहे हैं। राइट। यही है, बाकी सो क्या- लेट मी गो टू अविरल मलिक साहब। डॉक्टर अविरल मलिक, मैंने सबसे पहली बात बोली थी, 880 टन सोना है इस वक्त गोल्ड रिजर्व में हमारे पास, सबसे ज्यादा है 1947 के बाद। 880 टन्स, मतलब यू कैन इमेजिन 1 टन इज इक्वल टू 1000 किलो। सो 8,80,000 किलो सोना इस वक्त भारत के पास है, विच इज फैंटास्टिक। नंबर 2, Q2 results have been fantastic. Number 3, जो information services हैं, they have grown services. The service sector has grown by about 9.8%. Exports have also grown. Exports, the first half yearly exports are at about $419.9 billion. H1 exports जो है, जिसमें से Q2 exports are at about $209.9 billion. तो सर बाकी सब तो ठीक है, बहुत बढ़िया चल रहा है, एक्सपोर्ट्स बढ़िया चल रही हैं, इंफॉर्मेशन सर्विसेज बहुत अच्छी चल रही हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन फिर भी कीमतें जो हैं एसेंशियल कमोडिटीज की वो नीचे नहीं आ रही हैं। वो जरा बताएं सर अविरल मलिक साहब, उसके ऊपर ध्यान कब देंगे, और पेट्रोल और डीजल की कीमत पर कब ध्यान देंगे सर? डॉक्टर मलिक प्लीज। जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से आपके सवाल का, उसके साथ साथ जो पूजा जी ने उत्तर दिए और कई सारे सवाल भी पूछे और कई मेरे जवाब पे इन्होंने अपना विषय भी रखा, और इस सारे को मैं स्पष्ट कर देता हूँ। बोलिए सर। देखिए, जहां तक विषय है एक तरीके से पहले मैं पूजा जी से प्रारंभ कर लेता हूँ। पूजा जी ने कहा और उसके बाद नेहरू जी की भी यहाँ एक तरीके से चर्चा हुई, तो इस चीज को सर्वप्रथम याद रखना चाहिए, विशेष रूप से समाजवादी पार्टी के लोगों को। एकमात्र नेता अगर थे कोई समाजवादी पार्टी में, तो नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी वो नेता थे जिन्होंने नेहरू जी की विदेश नीति और रक्षा नीति दोनों का मुखर रूप से विरोध किया, और वो सबसे बड़े मुखर रूप से विरोधी थे नेहरू जी की विदेश नीति के भी और रक्षा नीति के भी। इस चीज को इन्हें याद रखना चाहिए, और चीन के विषय पर उनकी क्या राय थी इस चीज को भी साथ में पढ़ लेना चाहिए। और वो राय नहीं बदल जाती है समय के साथ। अगर ये कह दिया जाए कि इतिहास में ये था, इतिहास में हो गया, तो मैं समझता हूं एक पार्टी की जो आइडियोलॉजी होती है वो जब उसका गठन होता है तब से लेकर वही आइडियोलॉजी रहती है। अब कोई कहते कि वो समय के साथ परिवर्तित हो जाती है, तो ऐसा कोई आइडियोलॉजी का परिवर्तन ना होता है ना हो सकता है। इस चीज को विशेष रूप से याद रखा जाना चाहिए और रखना चाहिए। अगर बात कर जाए कि वो पुराना दौर था, वो 20 साल पुरानी बातें थी, 30 साल पुरानी बातें थी, अतीत में नहीं जाना चाहिए, तो मैं समझता हूं जब पार्टी अपना एक तरीके से फॉर्मेशन डे भी मनाती है, स्थापना दिवस मनाती है, सभी पार्टियां मनाती हैं, तो उसमें भी कुछ लोग तो फिर तो कह देंगे कि अतीत में नहीं जाना चाहिए और स्थापना के विषय को नहीं याद करना चाहिए। तो मैं समझता हूं ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, मैं विषय पे आता हूँ। जहां तक विषय एक तरीके से आज के समय का और विशेष रूप से ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल का, और जिस प्रकार की वहां घटनाएं घटित हो रही हैं, लगातार घटनाएं घटित होती हैं, मैं समझता हूं पूर्ण रूप से दुखद है, निंदनीय है, और कड़े शब्दों में उसकी निंदा करना चाहूंगा। और जहां तक विषय है लॉ एंड ऑर्डर का, तो लॉ एंड ऑर्डर पूर्ण रूप से ममता जी के हाथ में है, और ममता जी को ही पूर्ण रूप से डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, एसएसपी, हर जिले के एसएसपी और डीएम और उसके साथ साथ कमिश्नर्स पूर्ण रूप से ममता जी को रिपोर्ट करते हैं, और उसके साथ साथ पूर्ण रूप से लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है। राज्य सूची में आता है लॉ एंड ऑर्डर का विषय संविधान के अनुरूप। तो मैं समझता हूं ये तृणमूल कांग्रेस की और वहां की सरकार की और वहां की मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी है कि वहां पूर्ण रूप से लॉ एंड ऑर्डर सही रहे। ये विशेष रूप से उनसे मेरा आपके माध्यम से भी निवेदन रहेगा कि वो इक्वली सबको ट्रीट करें, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन, बौद्ध, पारसी, कोई भी हो, किसी भी जात का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी मजहब का हो, इससे मैं समझता हूं कोई लेना देना उन्हें नहीं होना चाहिए। वो एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं और सबको एक तरीके से संरक्षित करना, रक्षा प्रदान करना उनका प्रमुख कर्तव्य है। जो संविधान की शपथ लेकर ही वो मुख्यमंत्री बनी है। वोट बैंक की उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए कि वोट बैंक के आधार पर जो फैसले लेती है। नंबर 2, जहां तक विषय ममता जी का,
ममता जी की अगर बात कर जाए तो ममता जी सरकार नहीं बना रही है इस बार, ममता जी हार रही हैं। ये बंगाल की रियलिटी है और ये रियलिटी की अगर बात कर जाए ग्राउंड लेवल रियलिटी जो मैंने देखी है वो है। और पिछले विधानसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी हारी थी। ममता दीदी पिछले चुनाव में भी हारी थी, विधायक नहीं बन पाई थी, भारतीय जनता पार्टी से हार गई थी। और भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने थे शुभेंदु अधिकारी जी। इस चीज को याद रखना अत्यंत आवश्यक है। जनता ने उन्हें विधायक नहीं चुना था, वहां के लोगों ने एमएलए नहीं चुना था, वो एक अलग बात है। वो मुख्यमंत्री बन गई, वो एक अलग बात है, स्वागत योग्य विषय है, उससे हम कुछ नहीं कह रहे। लेकिन हाँ, विधायक नहीं बनी थी, डॉक्टर मलिक कहना आवश्यक है। डॉक्टर मलिक डॉक्टर मलिक जी, अखिलेश यादव जी ने कहा यू आर वीकनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, आप संविधान को कमजोर कर रहे हो, संविधान को कमजोर करके आप लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हो। डॉक्टर मलिक, आप कौन से विषय उठाते हो? आप इमोशनल पॉलिटिक्स खेल रहे हो, आप इमोशनल पॉलिटिक्स खेल रहे हो। वंदे मातरम वर्सेस गोवा ट्रेजेडी, गोवा के मालिकों को आपने ही भगा दिया बाहर। आगे जाके कह रहे हैं कि मेजर इश्यूज इंडिगो इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज। उसमें क्या सरकार, व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग वेयर इंडिगो क्राइसिस इज कंसर्न्ड, फार्मर्स, वर्कर्स, यूथ, कोई चीज पे बहस नहीं। वंदे मातरम पे बहस हो रहा है और ऐसे चीजों पे नेहरू जी पर बहस हो रहा है। इमोशनली आप इस देश को ट्वीट करना चाहते हो, इमोशनल तरीके से आप इसको देश को रूट करना चाहते हो। डॉक्टर मलिक जी, नहीं देखिए, मुझे समाजवादी पार्टी के पक्ष से किसी रूप में कोई लेना देना इसलिए नहीं है क्योंकि नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने पहले ही कह दिया था कि वो नेताजी पूर्ण रूप से नेहरू जी के मुखर विरोधी थे। उन्होंने पूर्ण रूप से विरोध किया नेहरू जी का, तो उसमें मुझे सपा का पक्ष अब दोबारा पढ़ने की या जानने की आवश्यकता नहीं है कि अगर वो नेताजी विरोधी थे, मतलब नेहरू जी के विरोधी समाजवादी पार्टी और उसके फाउंडर नेताजी थे। इस चीज को इन्हें याद रखना चाहिए। नंबर 2, जहां तक विषय समाजवादी पार्टी का जो कैडर है, अब जो ग्राउंड बेस्ड कैडर है और जितने भी नेता हैं और एक समाजवादी पार्टी में जितने भी ऐसे सक्षम लोग हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं और चुनाव लड़ना चाहते हैं विधानसभा का और पूर्ण रूप से अपने क्षेत्र में घूमते हैं, वो यही चाहते हैं कि 403 विधानसभा क्षेत्रों पे समाजवादी पार्टी लड़े और सीट शेयरिंग ना हो, कांग्रेस पार्टी को सीटें ना जाए। पूरी समाजवादी पार्टी का प्रदेश इकाई, राष्ट्रीय इकाई, राज्य इकाई और जिला इकाइयां सारा इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ना चाहती हैं। अब इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अब ये प्रियंका जी को फिर से आना पड़ेगा, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, मैं कुछ भी कर सकती हूं। वो जो नारा इन्होंने दिया था पिछले विधानसभा चुनाव में वो पूरा फ्लॉप हो गया था। इस चीज को भी याद रखना चाहिए। वो पूरे राज्य में घूमी थी और 403 विधानसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट्स डाल दिए थे, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ा था। तो कांग्रेस को अपनी स्थिति याद कर लेनी चाहिए। अब रही बात समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी की इंडिपेंडेंटली जब यूपी में पूरा चुनाव लड़ेगी और पूरे इनके कैंडिडेट्स खड़े होंगे तो इससे विशेष नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा और इमरान मसूद जी जैसे कांग्रेस के नेताओं को होगा जो समाजवादी पार्टी के कारण से सहारनपुर से लोकसभा चुनाव जीत गए थे। अन्यथा अगर बात कर जाए तो कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में कोई नींव नहीं है, इस चीज को भी याद रखना चाहिए। हालांकि ये वो राज्य है जहां से इंदिरा जी हो, नेहरू जी हो, राजीव जी हो, सब ताल्लुक रखते थे और सब सांसद रहे। इस चीज को भी याद रखना चाहिए। लेकिन डॉक्टर अविनाश मलिक, इसके पहले 80 सांसद चुन के आते हैं। इसके पहले कि मैं डॉक्टर पूजा मिश्रा से पूछूं कि भाई जो आपने नेताजी के बारे में बार बार कहा है उसके बारे में कुछ वो बोलना चाहेंगे कि नहीं, आपसे ये जानना चाहते हैं कि अभी तो क्या है कि अमित शाह साहब ने साफ कह दिया है और बाकी सब ने भी बोला, अनुराग ठाकुर साहब ने भी बोला है, लेकिन अमित शाह साहब ने तो क्लियर कट बोला है कि कांग्रेस जो है जिस प्रकार इम्पीचमेंट मोशन के साथ हो गई है वो तो क्लियर कट है कि ये तो एंटी हिंदू हैं, हिंदू विरोधी हैं। तो आप इस बात से सहमत हैं? वह असहमत कैसे हो सकते हैं? आपके अमित शाह जी ने बोला है। तो आप ये बताइए सर, कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है आपके मुताबिक? जी, आपका सवाल मेरे से है? आपसे ही है डॉक्टर मलिक, आपसे है। क्या कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है सर? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से हिंदू विरोध का, मैं समझता हूं कोई भी राजनीतिक दल हिंदुओं का विरोध करके इस देश में नहीं पनप सकता और ना वोट पा सकता है। इस चीज को स्पष्ट जान लेना चाहिए। नंबर 2, हिंदू बहुसंख्यक समुदाय है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन है और किसी प्रकार से अगर हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ होगा या हिंदुओं को टारगेट किया जाएगा, मंदिरों को टारगेट किया जाएगा या फिर धार्मिक स्थलों को टारगेट करने का तरीके से काम किया जाएगा या आस्था पे चोट की जाएगी या भगवान श्री राम के विषय पे, भगवान
भगवान श्री कृष्ण के विषय पे और हमारे पूर्वजों के विषय पे कुछ भी कहा जाएगा तो मैं समझता हूं गलत होगा। और निश्चित रूप से अगर कांग्रेस पार्टी की बात कर जाए तो मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी ही वो राजनीतिक दल रहा जिस पार्टी ने पूर्ण रूप से राम मंदिर निर्माण में रोड़े अटकाने का काम किया। इस चीज को मैं स्पष्ट कह सकता हूं। अब कौन राजनीतिक दल किसके पक्ष में है, किसके समर्थन में है, वो तो जनता अपने आप वोट की चोट से समझा देती है और बता भी देती है। लेकिन हाँ, पुनः अगर बात कर जाए उत्तर प्रदेश की और विशेषकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी में ये बिल्कुल स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी अब पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी से जो पल्ला झाड़ने का काम कर रही है वो उसी के तहत है जो अखिलेश जी बार बार कह रहे हैं। संविधान की बात वो कर रहे हैं और उसके साथ साथ जिस प्रकार अखिलेश जी ने कहा और लोकतंत्र की बात की और संविधान पे बीजेपी चोट करे, बीजेपी नहीं कर रही है, ये चोट कांग्रेस ने की है। जो कांग्रेस का घाव है उसे पुनः कुरेदने का और कांग्रेस पे टारगेट करने का डायरेक्टली इनडायरेक्टली अखिलेश जी काम कर रहे हैं। डॉक्टर पूजा मिश्रा, बार बार ये कहा जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव जी और उनकी पार्टी और जिस सभ्यता से वो आते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि समाजवाद की अगर बात कर ली जाए तो वो तो हमेशा ही एंटी नेहरू रहा है, लिहाजा आज की तारीख में अखिलेश यादव जी वो नेहरू जी के साथ कैसे हो गए? अब आप बताएं मैम। राजीव जी, इतिहास मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा आपको जानकारी होगी और आपको पता होगा कि हम एंटी कांग्रेस रहे थे इमरजेंसी के टाइम पे। और हमारे जो श्रद्धेय नेताजी थे उन्होंने पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की बात कर लेते हैं। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि सड़कें सुनसान हो जाएंगी तो संसदें आवारा हो जाएंगी, तो सड़कों पे जो है एजिटेशन दिखते रहना चाहिए, जिसको इस सरकार ने बंद कर दिया हुआ है। और श्रद्धेय नेताजी ने एक बात कही थी कि जो है राजनीति कुर्सी पाने का खेल नहीं, जमीन पर खड़े रहने की परीक्षा है। और समाजवादी पार्टी उसी को लेकर के आगे बढ़ रही है। हम जमीन पे धरातल पर खड़े होकर के लड़ रहे हैं और हम आगे भी ऐसे, हम तब भी लड़ रहे थे कांग्रेस से जब उसने गलत किया हुआ था और इमरजेंसी लगाई हुई थी। हम आज लड़ रहे हैं इस सरकार से क्योंकि ये सरकार गलत कर रही है। अभी बार बार आपने कहा कि इमोशनल पॉलिटिक्स, क्या नहीं, ये इमोशनल पॉलिटिक्स नहीं करते, ये वेपनाइजेशन ऑफ इमोशन करते हैं। ये पहले इमोशन आपको लेकर के आएंगे फिर उसको एज अ वेपन यूज करते हैं। इनके पास में यही एक हथियार बचा हुआ है, वेदर इट्स रिलीजन, वेदर इट्स इमोशन, उसको कोई भी पार्ट रहेगा उसको लेकर के आएंगे, उसका फिर वेपनाइजेशन चालू करेंगे और उस हिसाब से जाकर के वोट के लिए, वोट मांगने के लिए लग जाएंगे। वरना वंदे मातरम का डिस्कशन कितना ब्यूटीफुल हो सकता था। बचपन में हर किसी ने स्कूल में गाया है, चाहे उनको मतलब आता हो समझ में, चाहे नहीं आता हो, बड़े होके समझा होगा। पर ये सरकार इसी तरीके से करते चले जा रहे। श्रद्धेय नेताजी के मुझे लगता है कि बार बार कभी ये कहेंगे, ये चाहते थे कि कोठारी बंधु को भी सम्मान देंगे। श्रद्धेय नेताजी को पद्म विभूषण मिला हुआ है। जब इनको जैसा मौका लगेगा ना, तब ये कभी जो है कहने लग जाएंगे श्रद्धेय नेताजी ने कार सेवकों पे गोली चलाई। इनको लगेगा कि यार ये नहीं, अब ये बोलना हमारे लिए बेनिफिशियल है। फिर कभी बोलने लग जाएंगे कि श्रद्धेय नेताजी नेता थे, समाजवाद की बात किसी ने की थी, श्रद्धेय नेताजी ने की हुई थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की जब इनको बात करना होता है तो करेंगे, ये भूल जाते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी नेहरू जी के अगेंस्ट में चुनाव लड़ा करते थे और हारने के बावजूद भी उनके मंत्रिमंडल का हिस्सा हुआ करते थे। तो आप वहां मत जाइए, आपने उसको बहुत पीछे छोड़ दिया। आपकी जो स्तर है राजनीति की वो बहुत निचली स्तर की राजनीति हो रखी है, उस पर डिस्कशन नहीं किया जा सकता है। हाँ, हमारा आपसे विरोध इस बात का है कि आप जनता के लिए कार्य नहीं करते हैं, आप असल मुद्दों पर डिस्कशन नहीं करना चाहते, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो केंद्र हो। आप असल मुद्दों से भागते हैं और हम आपको असल मुद्दों पे लेकर के आना चाहते हैं। और ये जो है इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता है कि जिस तरीके से सरकारी मशीनरीज का मिसयूज करके सरकार ने ये फिक्स कर लिया हुआ है कि हम जो चाहेंगे वही दिखेगा, हम जो चाहेंगे वही बिकेगा। वरना आपको भी पता है कि इन्फ्लेशन और जो है इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी और इंडिगो, आप सोचिए प्राइवेटाइजेशन का मतलब कितना गंदा चीज दिखा है, एकदम लोगों को कि प्राइवेटाइजेशन कैन एंड अप सच अ वर्ड्स की आपके गवर्नमेंट का जो आदेश आया है उसकी अवहेलना कर दे, सरकार को झुका दे कि आपको बैकफुट पे जाना पड़ेगा, हम तो नहीं जाने वाले। और ये सरकार फिर भी बेचने पे लगी हुई थी। ये तो मुझे लगता है जनता को ये बिल्कुल खुली आंखों से देखना चाहिए और कि प्राइवेटाइजेशन किस हद तक खराब है, जिसको हम लोग बोलते हैं really privatization, is चले आए हैं। We'll have a separate discussion on that because this is not really privatization. You know and I know exactly who is the real owner of Indigo, so let's not go into that. However, there is one little line of Dr. Ram Manohar Lohia that I would like our viewers to know, because young लोग हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कौन थे किसी को याद भी नहीं होगा।
He said the biggest monopoly of power in Indian history is the Congress party. That's what he said. He was anti-Congress right from day one. और पंडित नेहरू के खिलाफ उनकी जितनी भी पूरी विचारधारा जो थी वो पंडित नेहरू के खिलाफ थी उनकी, as far as Dr. Ram Manohar Lohia is concerned. And do remember, it is the same Dr. Ram Manohar Lohia 1962 वॉर के बाद जब पंडित जी ने ये कहा कि वो जो जगह चीन ने ले ली है, नॉट अ सिंगल ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज ओवर देयर, एक घास नहीं उगता वहां पे, इट माइट बी द मून. तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि मेरे सर पे भी एक बाल नहीं है तो अपना सर दे दूं मैं क्या. दिस इज व्हाट डॉक्टर लोहिया वाज. सो ऑल आई एम सेइंग इज, I think Samajwadi Party perhaps should not forget its roots, because the Congress does not know where its roots are. Maybe they are remembering now. That's all I'm saying. The Congress should remember where its roots are. The day they remember Gandhi, समाजवादी तो है लेकिन लोहियाइस्ट नहीं है. मतलब समाजवादी है, लोहियाइट नहीं है, कहने का मतलब ये हुआ. Is that true? Is that true, Dr. Pooja Mishra? One second. You are not a Lohiite. It's very early to judge. वो जज करना नहीं चाहिए अगर खास कर, वरना जो है इतनी सारी बातें इन्होंने कहीं, मैं जज कर रही होती तो बीच बीच में न जाने कितने तथ्यों पर टोक रहे होते. जी. हमने कब से अपने लोहिया जी मैम, I still haven't heard from you. जी चलिए कर दीजिए लोहिया जी के विचार को. लोहिया जी के ऊपर कभी और डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये बताना लोगों को बहुत जरूरी था कि 94 रुपए 59 पैसे का डॉलर हो गया मैम. उस पर कोई कमेंट नहीं आ रहा. मतलब ये क्या? I really would like to know how is it beneficial for India. हो सकता है एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल हो. हमारे एक्सपोर्टर्स तो कहते हैं यार 150 रुपए का कर दो आज $1. We'll be very happy. But all I'm saying is, which means we are having to pay more for crude oil. तो कहने का मतलब ये हुआ कि रशिया से क्रूड ऑयल लेना हम बंद नहीं कर सकते क्योंकि हमें डिस्काउंटेड ऑयल चाहिए. अभी we just don't have the dollar. जो फॉरेन एक्सचेंज है पूरा इसमें चले जाएगा. डॉक्टर पूजा मिश्रा बताइए प्लीज. तो देखिए राजीव जी, डॉलर के अगेंस्ट है तो समाजवादी पार्टी ने, आपने शायद पता नहीं फॉलो किया है कि नहीं फॉलो किया है समाजवादी पार्टी को. अगर फॉलो किया होगा तो आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी बहुत प्रिसाइज रही है कि हमें बात करनी है बढ़ती महंगाई पे, हमें बात करनी है गिरते रुपए पे, हमें बात करनी है किसानों पे, हमें बात करनी है महिलाओं पे, हमें बात करनी है बेरोजगार युवाओं को लेकर के. उसके अलावा कहाँ पे सोरस हो रहा है, कहाँ क्या चल रहा है, हमें उस पर बात नहीं करनी है. और ये हमारे जो है सांसदों ने सदन में एक बार नहीं कई बार इसको बहुत प्रिसाइज तरीके से करेक्ट किया. पर मैंने आपसे बोला ना कि जब भी जो है स्पीकर महोदय बैठते हैं और सदन की कार्रवाई शुरू की जाती है तो वहां पे हमें सुनने को मिलता है कि विपक्ष का एक भी सदन प्रस्ताव मंजूर नहीं किया गया है. तो आप हमसे डिस्कशन चाहते कहाँ पे हैं? हम कहाँ पे आपको डिस्कस करके बता दें कि हाँ इस चीज के मुद्दे पे हमें परेशानी हो रही है. हम अगर क्वेश्चन आवर में सवाल उठाते तो भी हमें रोक दिया जाता है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे स्पीकर इज रेस्पॉन्सिबल टू अलाउ. मगर रिपोर्ट कार्ड जो नहीं पूछेगा, बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड देखेंगे दोनों साहब बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड देखेंगे तो कौन सा मुद्दे पर आप बात करेंगे? हर मुद्दा तो बीजेपी ने कहा कि हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है. आवास योजना 7 करोड़ घर, उज्ज्वला रसोई दुआ मुक्त, आयुष्मान वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ केयर, जल जीवन मिशन, हर घर नल से जल, हर घर शौचालय, स्वच्छ भारत, हर गांव बिजली, 18,000 विलेज अभी इलेक्ट्रीफाई किया, 25 करोड़ को पॉवर्टी. दोनों साहब मुद्दा क्या रह गया है बाकी? अब सिरप का भी मुद्दा चल रहा है उत्तर प्रदेश में. जी ड्रग्स के खिलाफ तो अभियान चालू है. पार्लियामेंट में संकल्प लिया है मोदी जी और अमित शाह जी ने, ड्रग फ्री इंडिया. यू डोंट बिलीव दैट? जैसे बिहार फ्री हो रखा है शराब से. जी दुरुस्त बात. दोनों साहब आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा. डॉक्टर अविरल मल्लिक जी का रिपोर्ट कार्ड जो है हर सेक्टर को कवर करते हैं, एवरी सेक्टर बचा ही नहीं. जो राहुल गांधी जी ने कहा बर्बाद अर्थव्यवस्था वो गलत बोल दिया, बीजेपी का कहना. पहले प्रधानमंत्री जी ने संसद में कहा था कि मनरेगा आपकी विफलता का प्रतीक है. कहा था जी कि मनरेगा जो स्कीम है ये आपकी विफलता का प्रतीक है, बोला था. आज उसका नाम बदल दिया. क्यों चला रहे आप ये योजना? जब उनको लगा कि नहीं ये योजना अच्छी है, देखिए कांग्रेस ने लाई थी योजना मनरेगा, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना थी. आज उन्होंने नाम बदल दिया. पूज्य बापू जी
ग्रामीण गारंटी योजना, तो नाम बदल दिया। योजना तो कांग्रेस की थी, पहले जो कांग्रेस की योजनाएं थी उसको आप विरोध करते थे, और आज वही योजनाओं का नाम बदल के हम बता रहे कि पीठ थपथपा रहे खुद की कि हमने ये ऐसा किया, हमने वो ऐसा किया। हकीकत तो ये है कि सभी योजनाएं कांग्रेस के वक्त में थी। और आपको एक बात बताओ कि कांग्रेस के वक्त में 2004 से 14 के बीच में 27 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए थे, गरीबी रेखा से बाहर आए थे ये 10 साल में। और फिर उसके बाद में मोदी जी ने भी दावा किया था कि हमारे सरकार में भी लोग गरीबी से बाहर आ गए। और इनके बीजेपी के आईटी सेल ने बीजेपी के मैंने मुख्य जो सोशल मीडिया हैंडल पर से एक फोटो रिलीज की थी कि देखो गरीबी से बाहर आ गए लोग, और ये देखिए कैसे खुश होके जी रहे हैं। तो एक बार राज ठाकरे साहब ने वो जो लोग थे जिनका फोटो इन्होंने दिखाया था बीजेपी ने, वो सब लोगों को मंच पे लाके खड़ा कर दिया कि ये लोग है वो, और ये कौन से गरीबी की। इन्होंने फेसबुक पे डाला था खुद का फोटो, आपने उठा के डाल दिया वही। तो ये झूठ फैलाने का काम करते हैं ना। ये वो लोग हैं जो गरीबी रेखा में थे, वो लोग नहीं थे। उन्होंने अपने परिवार का फोटो फेसबुक पे डाल दिया, इन्होंने वही उठाया और अपनी पीठ थपथपाने के लिए कह दिया कि गरीबी से बाहर आए हुए लोग। तो ये झूठे लोग हैं, ये झूठ फैलाने का काम करते हैं। तो यहां पर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं सर, डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त 2 साल थे, 2 साल, ये सुनने वाली बात है। पूजा मिश्रा जी जरा आप भी सुन लीजिए, अविरल मलिक साहब आप भी जरा सुन लें। 2 साल थे जब क्रूड ऑयल की, जो ब्रेंट क्रूड हम लोग खरीदते हैं ना, उसकी प्राइस थी $148 to $150 a barrel. That was the cost of crude oil at the time when Dr. Manmohan Singh was Prime Minister. उस वक्त पेट्रोल जो था वो 48 से 50 रुपए था, फिर 55 रुपए हो गया एंड स्टॉप्ड एट अराउंड 58 रुपीज पर लीटर। आज की तारीख में crude oil price is at about 100 and it is about, sorry, not 100, it is about $61 a barrel. $61 a barrel, and the petrol price in Mumbai is 104 rupees 21 paisa per liter. मतलब कहां मनमोहन सिंह जी ने वो कंट्रोल किया जब $148 पर बैरल था, आज $61 पर बैरल है। तब आपको पेट्रोल जो है 48 रुपए 50 पैसे से बढ़ते बढ़ते 55 रुपए तक हो गया। आज की तारीख में पेट्रोल सर डॉक्टर ढोने 104 रुपए का है, 104 रुपए 20 पैसे। सर व्हाट इज गोइंग ऑन सर, व्हाट इज गोइंग ऑन? अगर कांग्रेस की सरकार रहती थी तो इस वक्त पेट्रोल जो है 40 से 45 रुपए डीजल पर लीटर रहता जी। तो मेरा ये कहना है फिर भी जनता जो है, कुछ तो होगा ना सर, मेरी बात सुनिए, बहुत बड़ी बात है। फिर भी जनता जो है बीजेपी को वोट देती है, मोदी जी को वोट देती है सर, ऐसा क्यों है? नहीं, ये जो है, ये जो मुद्दे है कि जनता तक पहुंचाने में शायद विपक्ष कम पड़ रहा है। और अभी तो इन्होंने नया शुरू किया, हर घर में 30-40 हजार रुपए डाल दो और वोट जीत लो, वोट ले लो, खरीद लो, यही चल रहा है, बाकी कुछ नहीं। राइट, अविरल मलिक साहब, वन फाइनल वर्ड फ्रॉम यू। डॉक्टर मलिक, ये नया फॉर्मूला आपको मिल गया है, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। हर चुनाव के पहले हर महिला के अकाउंट में इतने पैसे डाल दिए जाएं। मनी इन द अकाउंट मींस वोट्स इन द ईवीएम, कहने का मतलब ये हुआ। सर डॉक्टर मलिक बताइए सर। जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से हमारी पार्टी का और एक तरीके से हमारे कार्यों का, तो गरीब पीड़ित शोषित वंचित के लिए किस प्रकार से लाभदायक योजनाएं चलाई जा सके, इस विषय पे हम निश्चित रूप से विचार करते हैं। और गरीब को टारगेट करके, गरीब को फोकस में रख के, युवाओं को, बेरोजगारों को फोकस करके निश्चित रूप से हम सरकार चलाते हैं। और सबका साथ और सबका विकास हमारा मूल मंत्र है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय भेदभाव का या फिर एक तरीके से तेरा मेरा करने का, हम इस प्रकार की राजनीति नहीं करते हैं। सम्मानजनक तरीके से हमारी सरकार चल रही है और सबका सम्मान रहे और सबको आगे बढ़ाया जाए, सबको मजबूत किया जाए। गरीबी मुक्त भारत का निर्माण हो, बेरोजगारी मुक्त भारत का निर्माण हो, रोजगार युक्त भारत का निर्माण हो, शिक्षित और स्वस्थ भारत का निर्माण हो। और एक तरीके से हमारा देश कृषि प्रधान है, तो किसानों के मुद्दे पर चर्चा हो, किसानों का लाभ हो और किसान किस प्रकार से आगे बढ़े, ये सुनिश्चित करना हमारी जवाबदेही है, जिम्मेदारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
और सभी पार्टियों से निवेदन है विपक्ष सकारात्मक राजनीति करे, विपक्ष को अधिकार सकारात्मक बोलने का, राजनीति करे, सवाल wonderful। उठाए, कुछ सवाल उठाए, लेकिन किसानों के मुद्दे पे, युवाओं के मुद्दे पे पूर्ण रूप से बात करें। Right, thank you gentlemen, thank you very much. A very good news by the way, we are almost at a deal. India-US tariff deal has almost been finalized. So congratulations to everybody. Thank you so much for joining us. Namaskar. Jai Hind. Bharat Mata ki Jai. Thank जी you. बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Well, that was it. And as far as the Prime Minister is concerned, of course, he was in Port Blair today celebrating the 115th anniversary of the anthem for India written by Vinayak Damodar Savarkar साहब यानी वीर सावरकर जी, क्रांतिवीर सावरकर द्वारा लिखित जो एंथम है उसको सेलिब्रेट करने के लिए अभी वो पोर्ट ब्लेयर में थे। दैट इज द पार्लियामेंट बाय द वे, पोर्ट ब्लेयर नहीं है ये फुटेज जो आप मोदी जी की दिखा रहे हैं वो पोर्ट ब्लेयर की नहीं है, अंडमान की नहीं है, पार्लियामेंट की है। लेकिन फिर भी, और जहां पर मैंने फिर बोला, अमित शाह जी ने रणदीप हुड्डा साहब की बड़ी तारीफ भी करी। वो बोल रहे थे कि यार कि जब तुमने ये रोल एक्सेप्ट किया तो मुझे लगा कि वो जो एक देशभक्ति की भावना हमेशा झलकती थी वीर सावरकर जी के चेहरे पे, मुझे लगता नहीं था कि कोई भी एक्टर वो अपने मुंह पर वो ला सकता है, लेकिन मैं गलत था, आप उसको लेकर के आए, ऐसा अमित शाह साहब ने बोला है। एंड रणदीप हुड्डा रियली एंड ट्रूली वर्क वेरी वेरी हार्ड टू गेट दैट लुक। ही लॉस्ट आई थिंक अबाउट 40 kilos or 50 kilos to get that lean hungry look of Veer Savarkar ji. But in any event, as far as But even Veer if the Savarkar ji Congress, is even the brilliant. Congress says, and the India Alliance says that the BJP is rewriting history, there's nothing wrong in telling the truth about Savarkar. Sir, let's be very सावरकर clear. जो उन्होंने सैक्रिफाइस किया, जो सावरकर के त्याग बलिदान है, उस चीज को अगर लोगों तक पहुंचाना, आज के जनरेशन तक पहुंचाना, स्टूडेंट्स क्लासरूम्स में पहुंचाना उतना ही जरूरी है जितना कांग्रेस फॉरगॉटन ऑफ। प्रदीप जी, आप मुझे ये बताइए, इग्नोर द कंट्रीब्यूशन ऑफ सावरकर। प्रदीप जी आप मुझे ये बताइए, आई हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल विद वीर सावरकर जी अपोलोजाइजिंग टू द ब्रिटिश। अगर आज वो माफी नहीं मांगते, आज हम वीर सावरकर को भूल चुके होते। जैसे जावेद अख्तर साहब के जो ग्रैंड अंकल हैं, उनकी कब्र है वहां पे, जैसे हम उनको भूल गए। उन्होंने माफी नहीं मांगी, उन्होंने कुछ नहीं किया, मर गए वहीं पे। इसी तरीके से हमारी गदर पार्टी के, पंजाब से जो गदर पार्टी थी, वहां के तकरीबन प्रदीप जी 900 के करीब लोग काला पानी में जाकर के मर गए। किसी का नाम भी याद नहीं है। आप मुझे बताइए, wasn't it better to come out of the jail, make a compromise, come out of the jail, और फिर उसके बाद आप करिए आपको जो कुछ भी करना है। आज वीर सावरकर जी को हम याद कर रहे हैं क्योंकि वो अंडमान में उनका देहांत नहीं हुआ। सीधी सादी बात है, मैं तो ये मान करके चलता हूं सर, इन अ वॉर यू हैव टू बी स्ट्रेटेजिक। बेवकूफों की तरह अगर आप अटके रहे वहां पे, नहीं ये होगा और फांसी पे लटक जाओ या कुछ और हो जाओ, ऐसा नहीं होता है साहब। सीधी सादी बात है। I remember one of the slogans of these politicians of the Middle Times. Yes. They say, if you fight and run away, you live to fight another day. You live to fight another day. That's it. Look at Chhatrapati Shivaji Maharaj. Chhatrapati Shivaji Maharaj never faced a Mughal army in a pitched battle. It was always guerrilla warfare. Attack in the night, disappear. Attack in the night, disappear. Attack, go. Attack, run. Attack, run. Our own Lord, That's it. Lord Krishna was called Ranchod Das. Yes. Ranchod Das. I mean, Yes. कि रणभूमि में जाकर के अगर एनिमी आपसे ज्यादा पावरफुल है तो उसको फेस टू फेस नहीं जाना है, आपको साइड से अटैक करना है, पीछे से अटैक करना है। सीधी सादी बात है। सो आई हैव ऑलवेज बीन अ ग्रेट एडमायरर ऑफ वीर सावरकर। वीर सावरकर जी का मैं शुरू से प्रशंसक रहा हूं, और जो कांग्रेस बकवास करती रहती है वीर सावरकर के बारे में, अगर आप चाहते हैं महाराष्ट्र में एक बार फिर आपकी छवि ठीक ठाक हो जाए तो ये करना बंद कर दीजिए। लेकिन हुए माए, जब राहुल गांधी जी अपने ही लोगों के नहीं सुन रहे तो हमारी क्या सुनेंगे? सीधी सादी बात है, आगे उनकी मर्जी। बट ग्रेट न्यूज, वी आर वेरी दिस क्लोज टू साइनिंग अ डील। द टैरिफ डील इज ऑलमोस्ट थ्रू, नॉटविथस्टैंडिंग ऑल द थ्रेट्स अबाउट क्या वो राइस के ऊपर और टैरिफ और ये वो जो होता है होने दो, लेकिन टैरिफ डील इज ऑलमोस्ट थ्रू। इट्स and US also is praising the particular deal. yes, It's coming, praise is coming from he all said sides. this is the best offer yet. That's Yes, what he yes, said. yes, yes. The head of the trade delegation that had come to India. And it's absolutely fantastic. And one other thing, एक और चीज़ है। अच्छा भाई, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करें प्लीज। When you click on the icon subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation now. चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दूसरी बात क्या है कि बहुत सारे पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे जो है ना बड़े खुश हो रहे हैं कि शहबाज शरीफ की मीटिंग हुई व्लादिमीर पुतिन से। आप जरा रशिया टुडे जो चैनल है उसका ट्विटर हैंडल देख लें, एक्स हैंडल देख लें। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को इंतजार करना पड़ा 40 मिनट बाहर।
व्लादिमीर पुतिन के ऑफिस के बाहर. फाइनली ही गेट क्रैश्ड into the meeting that was going on between President Vladimir Putin and President Erdogan of Turkey. दोनों के बीच में जो मीटिंग चल रही थी उसके अंदर थे. उससे पुतिन साहब ने कहा हाँ जी आइए, अब आप आई गए तो बैठ जाइए. 10 मिनट के बाद वो बाहर चले गए, शहबाज शरीफ साहब बेइज्जत होके. तो मेरा ये कहना है, एज फार एज द पाकिस्तानीज आर कंसर्न, यू मस्ट लर्न फ्रॉम द पाकिस्तानीज how to cut off their own nose to spite their own face. And then सीधी to बात tell है. that they won. And to tell that they won. और हमको लिख रहे हैं पड़ोसियों जली ना तुम्हारी वो. अरे मेरा ये कहना है, अरे डायलॉग तो अपना ले लो. अक्षय कुमार की पिक्चर का डायलॉग क्यों बोल रहे हो भाई? अपना डायलॉग तो बोलो. Russia today, the official channel of Russia says that Mr. Shahbaz Sharif gate crashed after having to wait for 40 minutes outside when Mr. Putin was meeting Mr. Erdogan. And within 10 minutes, he was effectively told he's not wanted. Now, these guys are so funny. अभी तक बात कर रहे हैं 7-0, 7 राफाल गिरा दिया. अरे 7 क्यों गिरा है? 70 गिरा है भाई तुमने. तुम ग्रेट आदमी हो. You have brought down 70 राफाल्स. मतलब हमारे पास थे भी नहीं, वो भी आपने गिरा दिए. चलिए, all the best to you. God bless you all, and God bless your field marshal, and God bless Pakistan for what they are doing. I have heard there have been about 6 attacks in Balochistan and in the northwestern frontier province in the last 3 days from the BLA and from the TDP. So why don't you work out what you have to do over there first? These guys have to wake up before these guys actually enter Islamabad. But then it's their country. देश तुम्हारा है, लाइफ तुम्हारी है, भविष्य तुम्हारा है, तुम्हारे ऊपर है क्या करना है क्या नहीं करना. एज दे से इन पंजाबी सानू की, जाओ जहन्नम में जाओ या अपने देश को जन्नत बनाओ, ये आपके ऊपर है प्रदीप जी. बट गुड न्यूज एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, इकोनॉमिक इंडस्ट्री इज वेरी गुड, everything else is also very very good. Only bad news coming in from cricket. But then what do you expect? गौतम गंभीर जब तक कोच हैं और अजीजा अगरकर साहब जब तक सिलेक्टर हैं तो यही होने वाला है. मतलब अब क्या करेंगे? They have to go. They have to go. अरे सर दे हैव टू गो, वो तो बहुत पहले से बोल रहे हैं हम लोग. इन्होंने तो गो 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 पता नहीं कितने लोगों का कर दिया. संजू सैमसन पिछले 10 मैच में प्रदीप जी उसने 3 सेंचुरी बनाई है. संजू सैमसन ने 3 सेंचुरीज इन द लास्ट 10 मैचेस. उसको बिठा दिया किसके चक्कर में? शुभमन गिल के चक्कर में. शुभमन गिल को ओपनर बनाना था, इसलिए आपने अभिषेक शर्मा को तो आप ड्रॉप नहीं कर सकते. अभिषेक शर्मा ने आपको पूरा जो है वो क्या बोलते हैं उसको, वो एशिया कप जितवाया है. अभिषेक शर्मा को आपको रखना था, इसलिए जबरन आपने उसको रखा हुआ है. तिलक राज को रखा हुआ है आपने आकर के, क्योंकि शुभमन गिल को आपने ओपनर खिलाना था, इसलिए संजू सैमसन को बिठा दिया. अच्छा भला टीम का बैलेंस बहुत बढ़िया चल रहा था. ओपनिंग अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन. उसके बाद आते थे अपने नंबर 3 पे, आइदर इट यूज्ड टू बी शिवम, आइदर इट यूज्ड टू बी दिस फेलो सूर्य कुमार यादव और वन अदर पर्सन. और यशस्वी जायसवाल को भी आपने बाहर कर दिया. मोहम्मद सिराज अभी भी बाहर है, मोहम्मद शामी अभी भी बाहर है. सरफराज खान की तो आपने ऐसी की तैसी कर दी. मतलब ये हो क्या रहा है? मेरी तो समझ के बारे प्रदीप जी. आई मीन दिस इज लाइक क्रेजी. दे आर हैंडलिंग इट एज इफ इनके आदरणीय सम्मानीय पिताजी की टीम हो. मतलब कोई दोस्त सेठ के 2 बच्चे हो ना, हाँ खेल बेटा खेल, तेरे को जो करना कर. दैट्स व्हाट दे आर डूइंग विद द टीम. ये हिंदुस्तान की टीम है यार, इंडिया की टीम है. Have to hold Amit Shah's son Jay Shah responsible for this. जय शाह साहब इनको बाहर कीजिए, किसी ठीक ठाक लोगों को लाइए, VVS लक्ष्मण को लाइए, राहुल द्रविड़ को बोल दीजिए भैया तू भी वापस आ जा, या रवि शास्त्री को बोल दो आ जा यार तू. किसी ऐसे बंदे को वापस लाना चाहिए. Oh, VVS Lakshman is a very cool guy. या फिर MS धोनी के सामने दंडवत प्रणाम कर लीजिए, उसको बोल दो तू आ जा यार, तू बन जा. लेकिन धोनी साहब आएंगे नहीं, क्योंकि धोनी साहब अभी खेल रहे हैं IPL. बाय द वे ही इज देयर इन द चेन्नई सुपर किंग्स टीम इवन नाउ. IPL खेलने का शौक है उसको अभी तक. वो बोलता है मैं इनसे सबसे ज्यादा फिट हूं. सो व्हाट इफ आई एम 40 years old? I can still run faster than these guys. Still fit. Absolutely. और दूसरी चीज क्या हुई है प्रदीप जी, ये दोनों जो महानुभाव है ना, हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यप, मौष्टिक और चाणूर, ये दोनों, क्या हुआ है कि इन दोनों ने विराट कोहली और रोहित शर्मा की बड़ी बेइज्जती करने की कोशिश करी. अब क्या हुआ है,
Rohit Sharma is the number 1 batsman in ODI and Virat Kohli is number 2. नंबर 1 एंड नंबर 2 तो वो हो गए. अब आप लोग क्या करेंगे? कोई नई स्कीम अब ये सोचेंगे कि किसी भी तरीके से अगले मैच में जहां पे रोहित शर्मा और विराट कोहली हो हिंदुस्तान हार जाए. सीधी बात है, ताकि हार का बिल उनके सर पर फटे, इन पे नहीं. Anyway, that's what I had to say, but this is rather sad. All I'm saying is I'm very, very disappointed. मतलब आप जो हैं अक्षर पटेल को नंबर 3 पे खिला रहे हैं और हमारे जो कैप्टन साहब हैं सूर्य कुमार यादव जी, उनका और शुभमन गिल का कंपटीशन है कि कौन कम रन बनाएगा. कभी वो 12 पे आउट हो जाता है तो वो 5 पे आउट हो जाता है, वो 0 पे आउट होता है तो ये 6 पे आउट हो जाता है. तो मतलब ये चल क्या रहा है? Had it been anybody else by now, both of them would have been out. Well, that's just about it. And once again, let me tell you to kindly subscribe to the channel and send your comments. When you click to the icon subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. Nation Now, the real people's channel. Well, that's just about it as far as we are concerned. And as Amit Shah Sahab says, the Congress has now joined the anti-Hindu forces. And the Congress will have a very hard time explaining what they are doing. And Dr. Pooja Mishra's explanation for the fact that the judge concerned was actually, again, Justice Swaminathan was talking about a whole lot of other things, then you should have done it then. You should have asked the DMK, भाई हम आपके साथ हैं, आप लोग करिए, तब करना चाहिए था. ये क्या है? जब मुरुगन भगवान के पक्ष में 2 बार जज साहब ने वर्डिक्ट दे दिया, उसके बाद आप उनको इम्पीच कर रहे हैं, then it becomes very difficult for anybody to understand your logic. No, nothing will work. I mean, जो दाग लगना था लग गया है. लग गया. उसको आप कुछ नहीं कर सकते. अब कुछ नहीं कर सकते. आप जितनी मर्जी भयानक से भयानक, बढ़िया से बढ़िया, जबरदस्त से जबरदस्त आप भाषण देते रहें लोकसभा में, अब तो हो गया कि आप हिंदू विरोधी हैं. That's it. Well, that's just about it as far as we are concerned from both Pradeep ji and myself and the entire team at Nation Now. आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. वंदे मातरम. भारत माता की जय. जय हिंद. जय.